everybody. Welcome to another episode of She's Fruitful Podcast. I'm your host, Anju Shakil. I'm very glad, honored, and excited to be right back here for you all once again. Happy Thursday. Hope you're doing well. I'm also doing great by the grace of God. I'm so excited for today. Today is just going to be so amazing because if you will just going to see our whole podcast till the end, so you will know why I am saying that today is just going to be so excited episode. Today it's just so like you can say so much happening in my life as well, and I'm just loving my life and the Lord, how the Lord is just using me in very different and incredible ways. But I'm so happy that you have shown much love into our previous episode of She's Fruitful podcast, which we have discussed about toxic relationships, and it was full of power of Holy Spirit and full of wisdom, guidance, and I am so amazed how the people and how the girls has relate their life to that podcast. I'm so much glad and honored. So today is also a very special episode. Today we have very different topic and different guest speaker as well. She is my beloved friend. She is my sister in Christ, and we guys have been in touch since like many long. But we were just trying to do something very new on our podcast as well, and like in our physical ministry. But the Lord is giving us this perfect time. So today we are recording this live episode. So she is my wonderful friend. Her name is Fiona, and we're just going to discuss about distractions, overcoming distractions, and staying focused on God. So before we will just going to discuss the topic and everything, I wanna invite my beloved friend, my beautiful friend Fiona. Hi, Hi. Angela. Hi Fiona. How are you I'm doing? good. How are you doing? I'm doing very well. Firstly and foremost, Fiona, I'm just so glad and honored that you have given me your precious time today on our She's Fruitful podcast. And this is honor to just host you today into our podcast. So, how are you doing? I'm doing great, and first of all, thank you so much, Angela, for inviting me. I'm very excited, and I'm very glad that we met finally. Yeah. Because Yes. we were planning very different kind of podcast, and we wanted to, हम चाहते थे कि लड़कियां हमारी बातें हों उससे बहुत रिलेट करें, एंड दैट वो जो चीज़ें हैं, एंड हम चाहते थे जो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं हम उसके बारे में बात करें. Yes. एंड वी डिस्कस्ड इट, बहुत ज़्यादा इस बारे में हमने डिस्कशन की, एंड फिर हमने सोचा दैट ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइव्स, एंड it's very happening, it's everywhere in this world. So thank you so Finally, much. we guys are doing podcast together. Yes. ये हमारा बहुत टाइम से प्लान था. Yes, exactly. और लेकिन वो कहते हैं ना, जब खुदा की अच्छी तरह से टाइमिंग और लाइक परफेक्ट टाइमिंग होती है तो फिर खुदा उसी टाइम पे वो चीज़ें मुकर्रर करता है, वो हैपनिंग हो रहा होता है. And I'm so excited. Thank you so much for your. And today is just going to be so awesome. Thank you. And chalo, let's dive into our topic, and Fiona, before we're just going to dive into our topic and discuss the things about the questions we have already going to minister over here and the word of God we want to serve here and deliver. So I just want you should have to introduce yourself, what you are just doing in your physical life and what you are just doing for the body of Christ. Okay. So I'm Fiona, and I have been serving Lord. वैसे तो मैं बचपन से क्रिश्चियन, बट अभी जब से मैंने खुदा को अपने इंटरनली तौर पे एक्सेप्ट किया है, मैंने उसके मिरेकल्स को देखा है, जब से उसने मेरी लाइफ में काम करना स्टार्ट किया है. बेसिकली मैं अपनी शॉर्ट सी स्टोरी बताऊंगी. दैट इज़ आई वेंट जर्मनी बैक इन 2023, एंड वहाँ पे आई यूज्ड टू लिव विद माई डैड, एंड मैं बहुत अकेली होती थी, एंड आई यूज्ड टू स्पेंड सो मच टाइम खुदा के कलाम को पढ़ने में, प्रे करने में. तब उसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके लिए मैंने उससे बहुत प्रे की. मैंने उससे बोला कि मुझे मेरी लाइफ में एक टेस्टिमनी चाहिए. मैं चाहती हूँ उस टेस्टिमनी से एवरीवन शुड बी प्लीज्ड, एंड वो बहुत
अट्रैक्ट करें, उनको पता चले कि खुदा आपकी लाइफ में क्या काम करता है एंड आप किस तरह से खुदा को और जान सकते हो। सो फिर तब मैं प्रे करती थी एंड तब उसने मुझे बताया दैट आई वांट यू टू यूज़ फॉर दिस मिनिस्ट्री वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम कलाम सुनाओ लोगों को और तुम लोगों को मेरी तरफ लेके आओ, विच इज़ आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिश्चियन। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि खुदा ने हमें दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं भेजा, ये हमारी लाइफ का ठीक है, हमारी ज़रूरतें हैं, पर जो हमारा मेन पर्पस है, जो हमारा मेन चीज़ है, वो है हमें खुदा के कलाम को सर्व करना है। Exactly, that we should have to serve ourselves for the body of exactly. Christ. So वो हर दुनिया के कोने में पहुंचे। तो फिर जब when I came back to Pakistan, I started working at my church and for people. So मैंने अभी तक बहुत काम किया है and I went Hyderabad, you know, मैं वहाँ पर गई and मैंने फिर उधर काम किया and मैंने देखा कि people are, you know, इधर के लोग खुदा को बहुत हाथ खोल के एक्सेप्ट करते हैं, बट ऑल दे नीड, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें कोई गाइड करने वाला हो, उन्हें बताने वाला हो दैट खुदा हमारी जिंदगी में इस तरह से काम करता है। ये खुदा ने काम किया उनकी ज़िंदगी में, सो वो मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं करेगा। सो तब से लेकर अभी तक आई एम सर्विंग द लॉर्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और तब से लाइफ बहुत चेंज हो गई है, इट्स वेरी, बहुत हैपनिंग हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक नई ज़िंदगी में कदम रखी है। यस, एंड आई एम सो ग्लैड फियोना कि आपको अपनी पर्पस और अपनी आइडेंटिटी को आपने लाइक इस छोटी सी उम्र में पहचाना और आपने समझा कि सच में मैं खुदा के कामों के लिए बनी हूँ और जो मेरा मकसद है असल जिंदगी का, तो वो खुदा के कामों के लिए है। और अच्छा यही है ना, खुदा को जवानी बहुत पसंद आती है और जिसने खुदा को जवानी में कबूल कर लिया, बस फिर आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर ली। और इवन दो आपकी जो इम्पॉसिबिलिटीज होती है ना, और जो चीज़ आप चाह रहे होते हो और आपकी फ्यूचर प्लान्स वगैरह, लेकिन होना तो सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। लेकिन जब आप खुदा को एक्सेप्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में, उसको उस तरह से सर्व कर रहे होते हो, तो खुदा आपकी लाइक माइंड और हर चीज़ से बियॉन्ड सोचता है, अबव एंड बियॉन्ड, और वो बस हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से। अब हम वी गाइस हैव एक्सपीरियंस्ड दोस थिंग्स एज वेल। वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस हियर, जो हमारी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, जो हमने देखा है, जो हो रही हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच once again, Angela. Yes, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ना आज का टॉपिक is very amazing and powerful. It's just got to be. और before you know Fiona, जो हम लोगों ने पहले टॉपिक डिस्कस किया था about toxic relationship for the girls, तो वो ऐसा था कि जो मैंने उसके बाद टेस्टिमनी सुनी ना, तो they guys were like कि हमारी ज़िंदगी से वो रिलेट कर रहा है और वो जैसे इनकरेजमेंट, वो जैसे मोटिवेशन उनको मिली वो थ्रू टॉपिक्स, और ऐसी लाइक डार्क सीक्रेट्स यू कैन से। और हमने उस चीज़ में मेंशन भी की थी कि मतलब ये ऐसी बातें हैं जो लोगों ने कभी डिस्कस नहीं की थी। और यू नो हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि उसमें इस तरीके से खुली तौर पे लाइक बातें नहीं बताई जाती और करनी चाहिए और डिस्कस नहीं करते ना लोग ऐसे। बट स्टिल खुदा ने हमें ऐसा मौका बख्शा और इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी कि हम उस चीज़ को सर्व कर पाएँ, उस चीज़ को अपनी इस यंग जनरेशन में यूथ में बता पाएँ, और स्पेशली फॉर आवर गर्ल्स जो इस चीज़ों से, इस कॉन्सिक्वेंसेस से गुजर रहे हैं। Yes, exactly. तो बस हम लोगों ने आज ये वाला टॉपिक चूज़ किया है। वी हैव टू ओवरकम आवर distractions and staying focused on God. It's just going to be so awesome. Yes, it will for sure. Yes, और मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ खुदावन की, शुक्रगुजार हर चीज़ में स्पेशली तो, लेकिन इसलिए कि खुदा ने हमें इतनी अच्छी कम्युनिटी दी लाइक फॉर अस, क्योंकि बाइबल में लिखा है इन प्रोवर्ब्स के एवरीवन शुड बी वांट्स टू बी योर फ्रेंड, और हर कोई चाहेगा कि वो आपका दोस्त बने, आपकी कम्युनिटी में आए और आपसे बात करे और आपके साथ लाइक रिलेशनशिप करे, फ्रेंडशिप्स करे, लाइक इन दैट वे लेकिन आप पे अब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अपना सराउंड चूज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप किसके साथ अपनी सराउंडिंग में और लाइक किसके साथ सराउंड करोगे। तो वो आप पे होता है कि आप कैसे मतलब लोगों को और कैसे इन चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हो। exactly. तो खुदा ने हमें इतने अच्छी लाइक विजडम गाइडेंस दी कि हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी में हैं और एक साथ कांटेक्ट में रह सके, और खुदा ने हमें इतनी अच्छी सिस्टर इन क्राइस्ट और आई एम सो ग्लैड खुदा ने हम दोनों को ऐसा मौका बख्शा कि आज हम
फाइनली अपने दिल की बातें, Yes. खुदा के कलाम की बातें And all podcast पे me share and करें। Angela wanted was हम सिर्फ यही चाहते हैं that हमारे experiences से, हमारी बातों से जो हमारी young generation है, जो youth है, वो बहुत attract हो, वो इन सब चीज़ों को relate करे और वो अपनी life में उन चीज़ों की वजह से एक तब्दीली लेके आए। Yes. वो चीज़ें उनकी life में बस बहुत बहुत powerful साबित हो, so that उनको भी पता चले that खुदा ये चीज़ें हमारी life में कर सकता है। वाओ, क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकता है। ऐसा जब आप है। उस पे बस ईमान लाओगे ना, तो everything which you want, your heart desires, तो Yes. above and beyond ही जाएगी। Yes, yes. Because we both have experience. जब खुदा हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ हम करते हैं और जब हम फेयरफुली एंड हर चीज़ वंडरफुली से सर्व कर रहे हैं, Yeah. अच्छी तरह से सब कुछ कर रहे हैं, तो वो क्यों ना हमारे लिए काम भी करेगा। बेशक। तो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के, स्पेशली लाइक मुझे तो पहले से पता था Yes, thank you. लेकिन लाइक फॉर ऑल द पीपल हु आर जस्ट वाचिंग अस राइट नाउ, और उनको ज़रूर हम मेरी प्यारी बहन, माय सिस्टर इन क्राइस्ट फियोना बहुत पसंद आई होगी। Thank you. She's very soft, she's very sweet, और I'm just looking forward in future कि हम दोनों साथ मिलके काम करें और खुदा के काम आगे बढ़ाएं, करते रहें इसी तरह से। So you have to stay connected with us till the end of our podcast. Yes. Okay, Fiona, I think we should have to dive into the Word of God, and we have to start questions. Okay. Like today is our topic, like overcoming distractions and staying focused on God. तो सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो ये है कि फियोना, आप हम दोनों ने लाइक ऐसा क्या था, आई विल ऑल्सो टेल आफ्टर दिस, कि हम लोगों ने क्यों ये वाला टॉपिक ऐसे मतलब ये वाला चूज किया है। Yes, so हमने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया था कि हम आजकल I have seen so many girls, so many boys that जो अपने रिलीजन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो अपने रिलीजन की तरफ नहीं आ रहे, जो अपने रिलीजन से दूर जा रहे हैं, बिकॉज उनको जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, जो उनकी ज़मीन पर ज़रूरियात है, वो पूरी नहीं हो रही, तो वो दूसरे रिलीजन्स की तरफ जा रहे हैं। पीपल आर वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ आओ, हम आपको वो चीज़ें देंगे। सो वो एक रॉन्ग बात वो कर रहे हैं। तो हम इसीलिए हमने ये टॉपिक डिसाइड किया था एंड हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते थे। सो आई नो इट्स अ बिट डार्क टॉपिक बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइव्स। Yes. Yes. You know, we also have to mention here कि जो कुछ बातें ऐसी होंगी जो डार्क सीक्रेट्स होंगी, Yes. लाइक फॉर आवर लाइफ, फॉर टीनेज लाइफ, जो हमने कभी किसी से सुनी नहीं होगी, लाइक फुली तौर पे कि वो किस तरह से कोई मतलब इसको डिस्कस नहीं करता, यू नो, Yes. बट हम उस चीज़ों को इधर डिस्कस करेंगे और Okay. बताएंगे कि सच में खुदा का कलाम इस तरह से कहता है कि हमें इस तरह से अपनी ज़िंदगी और उस चीज़ को ओवरकम करना है किस तरह से। तो ये कितना अच्छा हमने ये वाला टॉपिक Yes, चूज किया yes. आफ्टर दैट टॉक्सिक And it's very important. Yeah. Yes. It's just going to be so amazing. Okay, Fiona, we are just starting our questions. Okay. I have question number 1. Mm-hmm. How can not be distracted from the love of Christ? Okay, so first of all, materialism distracts us from the love of Christ. जो दुनिया में materialism वाली चीज़ें हैं, जो दुनिया में हमारी दुनियावी ज़रूरियात हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जब हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें वहाँ पे बेहतर मिल रही है, तो हम उस तरफ जाना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि यार अच्छा ये लाइफ में ये चीज़ हमें वहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, हम उस तरफ जाते हैं। एंड इफ़ वी सी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, आदम एंड हवा, उन्होंने सबसे पहले उनको डिस्ट्रैक्शन हुई थी। सबसे Yeah. पहले वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे जब सैटन ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। सबसे पहले वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, तब हवा ने उसकी बात सुनी और वो फल खाया। उसको Yeah. लगा कि ये फल मुझे और बेहतर बनाएगा, ये फल मेरी आंखें खोल देगा, मैं दुनिया की खूबसूरती और तरीके से देख पाऊंगी, जो कि हम देखते हैं कि बहुत गलत है और आज भी हम वही चीज़। और उनको ये नहीं पता था कि जो सारी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं वो खुदा के वसीले से ही आया। हाँ जी, हम कभी कभी दुनियावी ख्वाहिशों में इतने हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी ना, तो हमें सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। खुदा ने हमें कहा है तू इंतज़ार कर तो मैं तुझे हर चीज़ दूंगा। और फिर हम जब देखते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हुए, फिर जब उसने वो फल खाया तो उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल गया।
उनकी आंखें खुल गई, उनको फील हुआ दैट ओ नो, हमने ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। हमें दुनिया में गुनाह का पता चल गया, हमें झूठ का, हमें मक्कारी का, हमें हर चीज़ का पता चल गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने एक गलत पाथ चूज किया। Exactly, which is very against from the word of God. Yes, exactly. एंड फिर हम आज भी हम इसी तरह से चलते हैं। आज भी हम खुदा के, हालांकि खुदा के कलाम में हर चीज़ मेंशन है, हर चीज लाइक एक जगह पे दी हुई है ऑलरेडी, बट दे गाइस हैव लाइक यू कैन से पट्टी ऑन देयर आईज, है ना? यस और उनको नहीं पता कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारें। यस एग्जैक्टली। और हम आज भी उसी तरफ जाते हैं। हम अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में नहीं सोचते कि हमने ज़िंदगी सिर्फ इधर नहीं गुजारनी, हमने आगे भी, हमारी इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी हमें खुदा के पास, खुदा, क्या हमने किंगडम में नहीं जाना? क्या हमने खुदा के हजूरी में उससे बात नहीं करनी? तो खुदा ने हमें कहा है कि जिसने आज मेरा इनकार किया है, जिसने आज मेरा ज़मीन पर इनकार कर दिया, हम बाइबल में देखते हैं वो कहता है मैं अपने बाप के आगे तुम लोगों का इनकार करूँगा। एंड मेरा तो ये बात सुन के बस एक दिल फट सा जाता है कि किस तरह जिस खुदा के बिना हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और जब वो हमारी लाइफ में नहीं होगा, जो कि अभी भी ऐसा ही होता है, जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी अंजला, आई वांट टू टेल यू दैट मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी लड़कियों को देखा है जो अपना जो आई नो दिस इज डार्क बट आई हैव टू से दिस, जो अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जा रही है। वो अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। उनको लग रहा है यार इधर ये ज़्यादा चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ज़्यादा सही है। और फिर वो क्या होता है, आपको उस वक्त तो वो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं बट आगे जाके वही चीज़ें आपके लिए बुरी हो जाती हैं। आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको खुदा एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कम्युनिटी नहीं एक्सेप्ट करती, आप इस दुनिया में अकेले हो जाते हो। और फियोना, चलो इंसान की तो बात छोड़ दो, लाइक योर फैमिली, लाइक योर कम्युनिटी, और कोई भी लाइक योर फ्रेंडशिप्स और सब कुछ ना, लेकिन सबसे पहले लाइक दिल में वो खौफ नहीं आता कि खुदा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। एग्जैक्टली। और ये चीज़ सही नहीं है। शादी, मैरिज इज बहुत प्योर रिश्ता है। वो बहुत एक सेंसिटिव रिलेशन है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते दैट आप अपने रिलीजन में रहो, वो आपके रिलीजन में रहेगा। फॉर सपोज एंजला, आई वाज रीडिंग अ कोट जिधर वो कह रहा था कि अगर आप अपने रिलीजन से बाहर जाके शादी करते हो एंड यू स्टे बोथ इन योर रिलीजन्स, सो आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को जब आप कहीं डाउन फील करोगे, आपको कोई वर्ड्स चाहिए होगी खुदा के कलाम से कि कोई आपको आके हिम्मत दे दे। वो आपको हिम्मत देगा क्योंकि उसने तो कभी बाइबल नहीं पढ़ी। जब आप घिरोगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपका साथी है। So in every little thing, जब आप घिरोगे वो आपको उठाएगा। सो ऐसे तो जब आप अपना रिलीजन ऐसे रह के करोगे तो आप खुदा से भी दूर हो और आप उससे भी दूर हो। आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा से जोड़ती है, जो दो सोल्स को एक करती है। सो ऐसे कैसे दो सोल्स एक हो सकती हैं? सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन सो मेनी गाइज। मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं और इवन पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो स्पॉन्सर करते हैं दैट आप अपना रिलीजन चेंज करें एंड हम आपको ये चीज़ बेटर दे देंगे, हम ये चीज़ आपको बेटर दे देंगे। एंड क्या है, वो जा रहे हैं उस बात पे एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हमें अपनी इस जिंदगी के बारे में नहीं सोचना, हमें अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में भी सोचना है। आपका यहाँ का पैसा आप कहाँ लेके जाओगे? आप कहीं लेके जा सकते हो, कहीं मैं लेके जा सकती हूँ ना, है ना? हमें जो भी सेव करना है हमें अपनी आफ्टर लाइफ के लिए सेव करना है कि हमें खुदा पसंद करें। और उसके लिए क्या, बस अपनी प्योरिटी, हॉलीनेस और खुदा के बारे में सबको बताना है। एग्जैक्टली। और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शंस आपको बस तबाह कर देती हैं। Because when you're just doing life here on earth, तो there will so many distractions. Yes, exactly. हर तरह के distraction आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक इवन तो आपकी लाइफ खुदा के जब आप करीब आ जाते हो तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी हो जाती है। That is hard as well. वो भी मुश्किल है बट स्टिल आपको उस बात पे चलना है। आप चलते जाओगे, आप एक टाइम आएगा आपको वो हर्डल्स ही नहीं लगेंगी, आपको वो परेशानियां नहीं लगेंगी। आप समझोगे यार ये तो परेशानी ऐसी है, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, इसमें तो मुझे कोई वो नहीं होता। तो आपको बस डिस्ट्रैक्शन से अलग रहना है। आपका जो रिलीजन है, आपका जो
अपना एक मकसद है, जिस मकसद से आपको खुदा ने भेजा है वो आपको पूरा करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को तब्दील करो, ना कि आप खुद तब्दील हो जाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुदा के करीब एक और जान लेके आओ। आप और हमारा रिलीजन एंजेला हमें नहीं कहता कि आप, खुदा ने हमें ये नहीं बोला कि तू मुझे ये वाला वक्त दे, मेरी पूरे दिन में तू ये टाइम मुझे दे तो फिर मैं तेरी सुनूंगा। खुदा तो हमारी चलते चलते सुन लेता है। ऐसा ही है। हम किसी भी वक्त बैठ के प्रे करेंगे वो सुनेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, आपको अपनी मैरिज के लिए यू हैव टू प्रे। आपको खुदा से मांगना है कि मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए। वो तू मुझे प्रोवाइड करेगा, राइट टाइम पे करेगा, पर तू मुझे करेगा। आपको अपनी वर्ल्डली, अपनी दुनियावी डिजायर्स के ऊपर पीछे नहीं भागना। आप एक तो खुदा के साथ भी दगाबाजी कर रहे हो और आप अपने साथ भी दगाबाजी कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ, आपका जिस्म खुदा का मस्बा है। You are the body of Christ. Exactly. तो हमें इस जिस्म को, हमने इस रूह को, हमने इस जान को उसी तरह से लेके चलना है। Yes. हमें डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना, हमें खुदा पे भरोसा रखना है, हमें खुदा के कामों को करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हम उसके काम को आगे बढ़ाएं। हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। Yes. So I just wanted to say all my girlies, all my brothers, just be consistent. खुदा के साथ रहें, खुदा के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें। आप उसके कलाम को पढ़ें, वो आपको बताएगा आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। Yes. एंड हम डिस्कस कर रहे थे दैट आजकल जो दुनिया है वो बस भाग रही है किसी न किसी चीज़ के पीछे, है ना, कि हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। थोड़े से में खुश नहीं रहते। बिल्कुल ऐसा है। और जो चीज़ खुदा को भी नापसंद आती है, आप एक बारी खुदा को आजमाओगे वो आपको माफ़ करेगा, आप 2 बारी आजमाओगे वो आपको माफ़ करेगा। एक वक्त पर आके वो भी तो कहेगा यार कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी सुनती ही नहीं है, मैं अभी भी तुझे माफ़ करूँगा, फिर आप वही काम करोगे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको उसके साथ चलना है। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आप प्रे करो बैठ के, आप दुआ करो। Yes. आप दुआ में ठहर जाओ, आप रोज़ा रखो, आप फास्ट रखो। हमारे आई डोंट से मैं ये बात नहीं कहती दैट लव इज Sin. हाँ, sin. लव इज अ प्योर फीलिंग। वो एक ऐसी फीलिंग है। अब मैं एंजेला है ना, वी आर फ्रेंड्स, वी आर सिस्टर्स। जो हमारा प्यार है वो भी एक प्यार है। सो प्यार जो है, और अगर हम देखें तो हमारे खुदा का प्यार तो एक बहुत प्योर काइंड ऑफ लव है। Yeah. उसमें And you know the Bible also say कि खुदा के कलाम में भी ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट कोरिंथियंस में मेंशन है कि love does not envy, love does not boast, love does not like it's very kind and patient. और अगर सच्चा प्यार है तो वो प्योरली होगा और वो पूरा ट्रू होगा। Like उसमें कोई मिलावट, कोई कुछ भी नहीं होगा। एंड एंजेला ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा दैट ये पर्सन मेरे लिए खुदा ने बनाया है, पर ऐसा नहीं है। खुदा कभी नहीं चाहता आप उससे डिस्ट्रैक्ट होके किसी के पास जाओ। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप उससे छोड़ो, आप उसे छोड़ के, आप उसे भूल के आप किसी और की तरफ जाओ। पर इसमें हमारे अपने लोगों की गलती है, हमारे अपने पेरेंट्स की गलती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, विच हम अगले क्वेश्चन में बात भी करेंगे, कि आपने सिर्फ 2 टाइम की प्रे करनी है, आपने सिर्फ 2 वक्त नमाज पढ़नी है, प्रे करनी है, एंड आपने बाइबल टाइमली नहीं पढ़नी है। पर ऐसा नहीं है। And you know Fiona, I want to mention this thing, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कि like the things you are just sharing here, जैसे हम लोग को कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, like especially this is for girls, तो हम लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि if the person was believer, you know, और वो believer है, अच्छी तरह से हर चीज़ को believe करता है, खुदा की काम कर रहा है और बड़ा कंसिस्टेंट है, तो उसकी लाइफ में कोई हर्डल्स, उसकी लाइफ में कोई कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी लाइफ में कोई परेशानियाँ नहीं आएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन तो उस बिलीवर, उस
बेटी जो खुदा से प्यार करती है, खुदा का काम करती है, उसकी ज़िंदगी में और उस चीज़ें आती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो खुदा से और ज़्यादा करीब जाए, और शैतान को आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं पसंद, पसंद। और स्पेशली खुदा के साथ बिल्कुल नहीं पसंद। सो हम यही बात करते हैं Yes. एंड हम यही डिस्कस भी करते हैं दैट लड़कियों को, लड़कों को अपने खुदा के बारे में बहुत पता होना चाहिए। They should कि what is from God and what is not not from from God. God. Yes, हाँ। exactly. कि खुदा ने हमारे लिए क्या चीज़ भेजी है, क्या नहीं नहीं भेजा, भेजी। क्या सही है, क्या नहीं सही, हमें गलत और सही में डिफरेंस पता होना और चाहिए। अगर वो आपको डिफरेंस पता करना है ना, तो you have to just root it in Him, Yes. rooted in the Word of God, Yes, और just exactly. you have to led by the Holy Spirit. Yes, आपको और 3 तभी- टाइम खाना तो खाना है, हाँ। पर आपको खुदा के कलाम की बातों को भी अपने अंदर Yes. लेके आना है। So तब जब आपको एक डिस्ट्रैक्ट करे, आप तब उस पे हावी आओ। आप तब उसे बताओ कि मैं खुदा का बेटा या बेटी हूँ, मुझे ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती मेरे रिलीजन से। मेरा रिलीजन मेरे खुदा का प्यार है, वो उसने हमारे लिए जान दे दी, उसने हमारे लिए कफारा उठाया, किस लिए? ताकि हम ईमान लाए, Yes. ताकि हम बचाए जाएं, हम बिलीव करें, हम believe करें faith इस तो बात। हमारे ईमान हो। एग्जैक्टली हम और फेथफुल बने, इसलिए नहीं कि हम दुनिया में डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाएं, इसलिए Yes. नहीं कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है तो हम उस चीज़ पे बोले यार यही चीज़ खुदा ने हमारे लिए बनाई होगी। कभी कभी खुदा भी आपको आजमाता है, वो Yeah. देखता है कि ये आपकी मेरा faithfulness को। एग्जैक्टली ये मेरा बेटा या मेरी बेटी इस चीज़ को चूज करती है या नहीं, उसको डिफरेंस पता चलता है या नहीं चलता, दैट ये गलत है, ये ये सही है। सही है, ऐसा ही है। और हम बस यही चाहते हैं दैट एवरीवन शुड नो कि आपकी लाइफ में खुदा बहुत बड़े काम करना चाहता है। आप बिलीवर्स हो, आप उस You are the खुदा body को of Christ. एग्जैक्टली आप उस खुदा को मानते हो जो जी उठा है, जो जिसकी डेथ नहीं हुई है। एंड इमेजिन जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, वो हमारी लाइफ में कैसे कैसे काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप प्रे करोगे, नेक्स्ट मोमेंट वो काम हो जाएगा, बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम, समटाइम्स उस चीज में वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि खुदा आपको आजमाता है कि ये मैं देखता हूँ, वो भी देखता है कि यार ये मेरा बेटा या मेरी बेटी ये चीज डिजर्व करती है, क्या इसने इस चीज के लिए मेहनत की है। जब हम जॉब ढूंढने जाते हैं, जब हम अपनी लाइफ में किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि ये चीज़ हमें लाइफ में आगे फायदा देगी, ये चीज़ हमारे लिए सही है। और लोग वही करते हैं जो उन्हें फायदा देती है। एग्जैक्टली उस वक्त भी आपको खुदा से पूछना चाहिए कि खुदा तू मुझे बता, तू मुझे गाइड कर, तू मेरी गाइडेंस मांग। हर वक्त आपको खुदा की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप जिधर बैठ रहे हो, आप जिधर उठ रहे हो, हमारे जिस्म से, हमारी जानों से खुदा जाहिर होना चाहिए। आई ऑलवेज प्रे, मैं हमेशा अपनी दुआ में ये चीज़ ऐड करती हूँ दैट खुदाया मेरे बोलने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से तू जाहिर हो, तो लोगों को पता चले दैट मैं तेरी बेटी हूँ, लोग जाने। You know, Fiona, आपको पता है जब पहले वाले मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड्स थे ना, तो आई हैव मेंशन दिस थिंग कि वी शुड हैव टू मॉडल हिज लाइफ इनटू आवर्स, और हमें उसकी ज़िंदगी, उसकी हर चीज़ को मॉडल करना, मॉडलिंग अपनी ज़िंदगी में करना है। एग्जैक्टली ताकि हम जो भी जगह पे जाएं, जो भी जगह पे काम करें, जो भी काम करें और जो भी चीज़ करें ना, उसमें जाहिर हो कि हाँ सच में हम खुदा की बेटी हैं, खुदा का बेटा है। एग्जैक्टली We are just modeling his life. यस और हमें चाहिए कि हम उसकी तरह के काम करें, क्योंकि हम उसकी छवि में बने हैं। हमसे खुदा जाहिर होना चाहिए, हमसे लोगों को पता चलना चाहिए that they are believers। हमारे ईमान पे कोई उंगली उठाए, कोई हमारे पेरेंट्स को बोले, कोई हमारे सराउंडिंग्स को बोले that इसका ईमान किस तरह का था। आप चाहते हो आपके ईमान पे कोई शक करे, आपको उस वक्त वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बट आगे जाके इन फ्यूचर You will know the truth. एग्जैक्टली जैसे हवा ने जब वो फल खाया तो उसको पता चला कि दुनिया कितनी हार्श है। इसी तरह जब आप उस चीज़ को कर लेते हो, उस वक्त आपको वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपको अपने आप को उस चीज़ से बचाना है, आपको अपने आप को उस चीज़ से सेव करना है, सो दैट आप और लोगों की लाइफ्स को सेव करो। आप एक बार इस चीज़ में आके देखो, आप एक बार उस चीज़ को मना करके देखो, से नो टू दैट।
आप एक बारी उस चीज को मना करो, खुदा आपके लिए एक दरवाजा आपको लगेगा ना बंद हो गया, वो आपके लिए 5 दरवाजे खोलेगा। Wow. वो आपके लिए इतना आपको दे देगा, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। Yes. आप सोच भी नहीं पाओगे Yes. आपके लिए कहाँ से चीजें हो रही है। एंड चूज वाइजली, बिकॉज व्हेन यू डोंट चूज वाइजली फिर आप आगे लाइफ में Yeah, पछताते you हो। will be in so many consequences. एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चीजें बहुत डिफरेंटली होने लग जाती हैं। आप फिर आप खुदा से मांगते हो, आप खुदा से पूछते हो कि तू मेरी लाइफ में ये चीज क्यों, अब मेरी लाइफ में क्यों आ रही। पर तब तो आपने खुदा की बात नहीं सुनी, तब तो आपने उसको नहीं माना, तब उसने आपको दिखाया, उसने रास्ता बताया। Yeah. उसने तो नहीं कहा कि चल अब आप इस रास्ते पे चलो। This is called distraction. Yes, exactly. Then why? अब आप क्यों उससे Yeah. वो पूछ रहे हो कि अब मेरी लाइफ में ये चीजें क्यों आ रही हैं? Wow. बट स्टिल हमारा खुदा इतना प्यारा है। आप इतनी गलतियां कर लेते हो लाइफ में, आपकी लाइफ में इतनी चीजें हो जाती हैं जो आप इमेजिन, आप ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि ये गलती आपसे होने वाली है और वो हो जाती है। बट स्टिल जब आप खुदा के पास आते हो, जब उससे माफी मांगते हो, वो आपको फिर उठा खड़ा करता है, Wow. वो आपको फिर अपने हाथों में उठा लेता है। Yeah. एंड अगर आप इस दुनिया में देखो, पीपल आर नॉट लाइक दिस। लोग आपको माफ नहीं करते, लोग आपकी गलती को टॉन्ट मारते हैं, लोग आपकी पास्ट लाइफ को आपको सुनाते हैं, लोग आपकी फ्यूचर में आप क्या करोगे वो बताते हैं, इवन तो आपको पता होना चाहिए, आपके खुदा को पता होना चाहिए, बट दे टेल यू। और वो तब होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट They guys are just like कि वो predict कर रहे हैं। हाँ। और उनको ऐसा लग रहा था हाँ ये बात सही है। और Exactly. यही होगा। यही होगा। एंड दैट इज रॉन्ग। Yeah. आप नहीं जानते खुदा ने आपकी लाइफ में आगे क्या लिखा है। Yes. Isn't it amazing? It is very amazing. So you should know that what is wrong And what is right for you. Yes, exactly. So please don't be distracted. अपने आप को खुदा में मतवज्जा करें, अपने आप को खुदा की तरफ लेके आए, Yeah. कलाम को पढ़ें, उसमें जाने कि खुदा ने हमारे लिए क्या Yeah. चीजें रखी हैं। Choose wisely. Stay consistent with him. Yes. And just deepen your relationship. Yes, exactly. और अगर आप अभी हमारी बातों को रिलेट कर रहे हैं और आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, because I have seen my friends Yeah. suffering from this thing. Hmm. I have seen my surroundings suffering from this thing. Hmm. That उन्होंने वो चीज़ पहले तो कर ली, क्या जान के कि नहीं यार ये इंसान मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ये मेरे लिए सब कुछ है, I cannot live without him. Yeah. I cannot live without her. Any single day. Any single day. Hmm. वो आपको रोज आपके लिए बेटर चीजें कर, Hmm. बट आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कलाम से। खुदा आपके लिए बेटर कर। Yeah. ये वही हाँ। materialistic. एग्जैक्टली आप जब खुदा को छोड़ते हो, जब आप खुदा की बातों को छोड़ते हो, जब आप देखते हो कि यार खुदा में तो मैं देखता हूँ बहुत मुश्किलें आ रही हैं, Yeah. इस जिंदगी में तो बहुत हर्डल्स हैं, इस Hmm. जिंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, Hmm. तो आप एक इजी पैथ को अपनाते हो कि यार नहीं ये वाला पैथ जो है वो बहुत सही है, Hmm. इधर हम इजीली चले जाते और हैं। आजकल लोग इस तलाश में होते हैं कि हमें बहुत आसानी का रास्ता मिल जाए और एग्जैक्टली उनको कोई भी ऐसी सारी सीढ़ियों पर चढ़ने का दिल नहीं करता। दे आर जस्ट लाइक कि हम फर्स्ट स्टेप पे हैं ना तो हम एंड वाले स्टेप पे इजीली पहुंच जाए। यस तो इस तरह से ही सारी दुनिया इस तरह से इसी लेवल में लगी है। एग्जैक्टली। और प्लीज अपनी गलती को उस वक्त पे जाके पछताने से अच्छा पहले उस चीज को Yeah, sense करो, because you are sense never करो। too late. यस खुदा का आप क्यों चाहते हो कि खुदा जब आप उसके सामने खड़े हो तो हमारा क्राइस्ट जिसने हमारे लिए अपनी जान दी वो आपको सामने खड़े होके बोले कि मैं इसको जानता ही नहीं। आप कैसे उस मोमेंट में अपने आप को फील करोगे? Yeah. आपके पेरेंट्स आज आपको छोड़ के जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तूने गलती कर ली, हमने तुझे नहीं अपनाया। Yeah. आपको कैसा फील होता है? देन आपकी लाइफ से यार वो सपोर्ट चली गई है, Hmm. आपकी लाइफ से वो चीज चली गई है, Hmm. एक साया चला गया। सो इमेजिन जो आपको सब प्रोवाइड करता है, जो आपकी गलतियों को माफ करता है, Hmm. जो आप गिरते हो वो आपको उठाता है, जब वो आपकी लाइफ से चला जाएगा तो फिर तो जस्ट लाइक आपकी जिंदगी है ही नहीं। एग्जैक्टली आप खाली हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। Hmm. आप जिधर कदम उठाओगे उधर आपको जो है वो नहीं मिलेगी कामयाबी। क्यों? Yeah. क्योंकि आपने खुदा को वो किया। Yes. Yes.
So So yes. wonderfully said. Yes. Fiona, I just want to mention one scripture here, which is very related to this thing we have shared over here. कि like materialism और materialistic life के बारे में, तो खुदा का कलाम में कुछ यूँ लिखा है, मतलब in when you go to the Bible or in the word of God says in Matthew chapter 6 verse 33, but seek first his kingdom and his righteousness, and all the things will be given to you and added to you as well. Amen. Exactly. Oh, wow. Amazing. तो मतलब खुदा का कलाम भी यही कह रहे हैं इस बात के लिए और इस बारे में कि जब तू खुदा के कलाम के लिए उसके किंगडम को जब सीख करेगा, परस्यू करेगा ना, तो जब तो सारी चीज़ें होंगी, जो सारी चीज़ें तेरा दिल चाहता है, जो हर चीज़ वो तेरी हर चीज़ में खुद ही ऐड हो जाएगी और वो खुद ही दे देता है. Yes. Wow. Yes. Wow. Wow. So I think we should have to move forward. Yes. and- Let's move on to the next question. Yeah. वरना हम लोग के पास तो बहुत बात है. Yes, we can talk on this forever. Yeah. Yes. और हमें तो like we are just like कि अगर हमें तो कोई इतने घंटे भी साथ बिताते Yes, yes, because these topics are very, people are just जितना ruining their lives. या जितना फियोना इसके डीपली जाते जाएंगे ना, तो उतना डीपली खुदा में एम्पावर करता है, खुदा में इनकरेज करता है उस बातों में, और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे जब वो रिलेट करता है तो फिर दिल करता है कि क्यों ना हम लोगों को बताएं हमने जो अपनी लाइफ में देखा है, जो हमारे आसपास हो रहा है, हम उसे Yeah. क्यों ना बेहतर करें, Yeah. हम उसे क्यों ना एक अच्छे राह पर लेके आए. Because we are chosen and we are Yes. just called to serve the Lord. Yes, exactly. और This हमें- is our responsibility. हाँ, Yes, बिल्कुल. yes, yes. So Fiona, we are just going to do our question number 2. Okay. Is that right? Mhm. Okay. Our question number 2 is that why do so many people claim to be Christian, but they don't follow Christ? Wow. I just want to mention after this question one thing. I have seen one picture, or like it was just like in one court few days back. So it was just like कि काफी लोग होते हैं. There are just like two paths. Many people are here, and there is only one group. You can say group of 4, but the most and the majority of people are here. So over there, it was literally they believe in Christ, but they obey in Christ. Yes, yes. वो बिलीव करते हैं खुदा पे, वो कहते हैं कि हाँ मैं मसीह हूँ, जो ये वाला बात के लोग हैं, जो इधर सारे लोग हैं, और वो कहते हैं हाँ मैं खुदा को बिलीव करता हूँ और खुदा को मानता हूँ अपनी जिंदगी, और मैं मसीह भी हूँ, आई एम क्रिश्चियन. बट ये वाला जो बात है, जो एक ग्रुप है और जो बहुत कम लोग हैं, और वो ओबे कर रहे हैं खुदा को, Yes. like through the word of God, और वो खुदा को ऐसा समझ रहे हैं like we are just body of Christ, Yes. so we should have to just model his life into ours, Yes. और हमें उसी तरह से अपनी जिंदगी को like Yes. गुजारना है. तो जो ये वाले हैं और ये वाले दोनों बात में से कौन से आपको होता है, कौन सा सही होगी? Because they are just believing and they are just obeying everything. Of course, the Yeah. ones जो अपने आप को खुदा की Obeying. मज़बा समझते हैं, जो अपनी बॉडी को समझते हैं कि ये खुदा की है, Yeah. जो खुदा को कबूल करते हैं, जो उनके रास्तों पर चलते हैं. Hmm. और एंजेला, this is a और you very know, good question. है ना फियोना, इधर ज्यादा लोग हैं और इधर कम लोग हैं. Yes. और इधर वाले जो ज्यादा लोग हैं वो इसलिए हैं because they don't know कि we should have to obey the Lord, Yes. obey the word of God, obey His life, but they are just believing in Him. Yes. और they know, उधर उनको पता है कि वो थोड़े हैं, लेकिन उनको पता है हमें कैसे खुदा को Yes. बिलीव करना है, obey करना है. And I feel like ये Christian is very amazing. And अगर हम देखें तो खुदा ने इधर मैथ्यू 7 में बोला भी है that बहुत से लोग हैं जो मुझे खुदा करेंगे, जो मुझे बोलेंगे कि क्या खुदाया हमने तेरे नाम से मिरेकल्स नहीं किए, क्या खुदा हमने तेरे नाम से जानों को तब्दील नहीं किया. बट इन द एंड बहुत कम है जो किंगडम में जाएंगे. क्यों? क्योंकि लोग बहुत अपने आपकी ठीक है, आपकी लाइफ दोनों वे में नहीं चल सकती. दैट हम एक बहुत नॉन बिब्लिकल तरीके से चल रहे हैं. दैट इज कि आपको सिर्फ 2 टाइम प्रे करनी है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको 2 टाइम बाइबल, आप चर्च चले जाओ संडे को, एंड दैट्स इट. इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं ये है. सब कुछ नहीं है. आप कहीं खुदा को इसमें देखोगे ही नहीं कि यार अच्छा ठीक है उनकी लाइफ में
आप अपनी जिंदगियों में शादियों पे अपनी जिंदगी में खुदा को बुलाते हो? नहीं, शादियों में गाने होते हैं, शादियों में डांसेस होते हैं, बट खुदा हमारा नहीं होता। कल्चर ये और जो चीजें पहले से रिचुअली जो आ रही है ना वो उसी को फॉलो करते हैं। तो तब खुदा भी तो आपसे पूछेगा कि तूने मेरे नाम से मौजज़ात तो किए, पर तूने इस जगह पे भी मुझे डिनाई किया। They are different in their own physical life, but they are very different in Yes. front of people, Exactly. in front of God. एंड मैं अंजना से यही बात करी थी, हम अभी भी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे, दैट व्हेन यू आर like preaching, when you are telling others, that means you are their teachers. Wow. That means आप उनके टीचर्स हो, वो आपको एज अ टीचर देखते हैं, वो आपकी लाइफ से चीजों को सीखते हैं। आपको ऐसा रहना है, आप साथ ही साथ अपनी दुनियावी भी जिंदगी को लेके चल रहे हो और आप साथ साथ खुदा भी कर रहे हो। That is not good. This is false. This is false. Yeah. आपको लोग एज अ टीचर ले रहे हैं। I have seen so many girls जो एक दूसरे को देख के खुदा की तरफ भी जाती हैं एंड देन फिर वो अपनी दूसरी जिंदगी को Because they लेके are just चलती हैं। inspired from that Girl. not from God. God, exactly, yes, Angela. और अब जब आप दूसरों से इंस्पायर होते हो, वो चीज गलत है। इंस्पायर फ्रॉम गॉड। Yeah. अपनी डिजायर्स को खुदा के तरीके से लेके चलो। आप देखो, अब उससे गाइडेंस मांगोगे, आपको वो बताएगा कि यार ये चीज गलत है, तू मेरा बेटा मेरी बेटी इधर ये चीज गलत लेके चल रहा है, ये मैं नहीं चाहता कि तू इसको इस तरह से कर, क्योंकि हमारा खुदा पाकीज़ा खुदा है। He wants पाकीज़गी। He wants a holiness in us. Yes, exactly. He wants us to be, कि हम अपनी जानों को उसको दें। ऐसा नहीं है आप अपनी जिंदगियों को खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। आपकी दुनियावी जिंदगी चलती है, बट प्लीज मेक श्योर दैट उसमें खुदा की मर्जी है। तो अपनी शादियाँ खुदा के नाम से लेके चलनी चाहिए। एंड आप खुदा करते रहोगे, तब भी आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जब तक आप उसकी मर्जी से नहीं चलोगे। जब तक आप देखोगे नहीं कि हमारा खुदा इधर क्या चाह रहा है, हमारा खुदा हमें क्या कह रहा है, हमारा खुदा क्या हमें सही तरीके से बताता है। एंड एज अ टीचर, एज अ प्रीचर, यू शुड प्रीच व्हाट ही सेज। यू डोंट हैव टू प्रीच जो आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज मैं फिर कहूंगी लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, और मैं इस चीज से बहुत डरती हूँ। आई डोंट वांट टू बी इन दोज पीपल्स जिसे खुदा लास्ट में कहेगा कि मैं तुझे नहीं चाहता। I really don't want to be that, and I hope आप सब भी वही चाहो। I hope सब वही चाहे कि आखिरत में, एंड में आपको ये ना बोलना पड़े, आपको अपने आप के अंदर फील ना हो कि हम काश पहले ये चीज कर लेते। हम आज भी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, they preach, they say Lord Lord, they say everything, but वो अपने दिल से खुदा को एक्सेप्ट नहीं करते। They don't have the guidance from the Holy Spirit. They are doing everything, इसके साथ साथ they are doing जो चीज़ें उनको सही लग रही हैं, and that is wrong. आपको देखना है, आपको गाइडेंस मांगनी है, आपको खुदा के कलाम से बताना है। हर चीज़ में रेफरेंस है खुदा का, हर चीज़ में। पूरी बाइबल में जो हमारी जिंदगी में हर चीज़ होते हैं, हर काम होता है, वो हर चीज़ मेंशन है। आप हर चीज़ देखो, शादी के बारे में, गुनाह के बारे में, चोरी के बारे में, आपको लाइफ कैसे गुजारनी है इस बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। You should learn, you should seek. You don't have to say those things जो आपको अपनी मर्जी से लग रही है। आप अपनी दुनियावी जिंदगी को भूल जाओ जब आप खुदा को एक्सेप्ट करते हो। And when you know Fiona, जब हम लोग जब रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं ना, when we talk about toxic relationship, Yes. like as we have done before as well. Yes. तो I just wanna mention here कि जब हमारे टॉक्सिसिटी में जा रहा होता है ना, तो हमें पता लग रहा होता है कि हाँ ये तो खुदा की तरफ से और ठीक होगा, और इवन दो वो चीज़ें चलती शादी तक भी पहुंच जाती हैं, बट आफ्टरवर्ड्स वो फेल हो जाती हैं। Yes. क्योंकि उसमें खुदा नहीं होता। खुदा नहीं। और आपकी जब मैरिज में, एंजेला टेल मी, जब आपकी शादी में खुदा नहीं है, जब आप गाने से अपनी शादियाँ स्टार्ट कर रहे हो, I know ये चीज़ दुनिया पे है, ठीक है, I'm not saying जो चीज़ गलत है, which should be pointed out, जिस चीज़ पे काम करना चाहिए, but still आप अपनी शादी को खुदा से स्टार्ट करो,
आप उससे उसकी प्रेजेंस मांगो उधर, आप उसको बोलो कि हम चाहते हैं कि तू हमारी शादी में एक एक कदम में साथ रहे। Anyway, तो in शादी and in your wedding as well and after your wedding, like क्योंकि असल जिंदगी तो शादी के बाद स्टार्ट होती है ना, क्योंकि because two person are just one soul, one soul, तो वो वाला होता है, तो उसमें हमें खुदा के wisdom guidance की बहुत ज़रूरत होती है, because अगर two different mentalities जब एक होती हैं, two different souls, two different backgrounds, culture you can say, और सब कुछ उस तरह से differently हो रहा होता है, और वो जब एक में एक family बनने में जा रहे होते तो it's very sensitive, और वो हमें purely करनी चाहिए, like purely with the word of God, तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें खुदा हमें लीड करे। Exactly. और आप अगर अपनी मैरिज को, अपने रिलेशनशिप को, आपका आई नो दुनिया में आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ होती है, आपने एक रिलेशनशिप से सीखा है ना, आप कोशिश करो नेक्स्ट में आप खुदा को रखो। बिलीव मी और नॉट, आप उस रिलेशनशिप में कामयाब भी होगे, आपका वो रिलेशनशिप उस तरह से चलेगा जिस तरह से आपने सोचा हो, और आप खुदा को भी उससे जलाल दे रहे हो, because God is just going to tell you what is good for you and what is not good for you. और उसमें आपको ऑटोमेटिकली खुदा बता देगा, और आपको सिर्फ खुदा नहीं करना, आपको खुदा को एक्सेप्ट भी करना है, आपको उसकी मर्जी से अपने आप को चलाना है, आपको इस चीज़ पे यकीन रखना है दैट अब हम एक नई लाइफ में स्टेप रखेंगे, अब हम वो पुरानी लाइफ नहीं जी रहे, अब अगर हम इस चीज़ को करेंगे ना तो पीपल आर गोना सी एंड वो भी देखेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम भी ये करें, बिकॉज हमने देखा था यार वो भी ये कर रहा था और वो साथ साथ ये भी कर रहा था। एंड हम अभी बात कर रहे थे दैट ऐसे लोग अपने आप को गलत तरीके से लेके चलते हैं, ऐसे लोग गलत चीज़ों में जाते हैं, ऐसे लोग देखते हैं यार कि मैंने तो उसको देखा था उसने भी ये चीज़ की थी तो फिर मैं भी करूँगा, मैंने देखा था यार वो उधर ये चीज़ हो रही थी, तो हमें बस अपने आप को एक राइट पैथ पे रखना है, हमें खुदा की गाइडेंस को मानना है। And the thing which you are just saying कि हमें believe करना है and we should have to obey as well. तो the starting thing जो हमें अपनी ज़िंदगी में करनी है कि हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं after we have done the things in the past, और ऐसे ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी, because we have a question as well about this thing. लेकिन I just want to tell you that कि अगर you are just a new girl and just doing life with Jesus, and after so many consequences, so many hurdles, so many like different life before, लेकिन afterwards जब आप खुदा को कबूल कर रहे हैं और खुदा को अपनी ज़िंदगी में invite enter कर रहे हैं, और उसके बाद you should all have to do is that you just have to deepen your relationship with him. Just you have to do deeply it with him, like just ऐसा करना कि we have to just rooted our life into him. Exactly. और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, like through the word of God. And हमें अपने अंदर खुदा को लेके आना है, Yes. हमें सिर्फ अपनी बाहरी लोगों को दिखा दूं कि मैं खुदा के करीब हूँ, इस तरह नहीं जाना। No, this is the double faces. Yes. हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, Yes. हमें खुदा को दिखाने के लिए करना है, हमें इस तरह से करना है that वो हमसे खुश हो। And I can say I have experienced it, and I have seen so many girls experienced it. और मैंने दुनिया में लड़कों को भी देखा है ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए, that जब आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो ना तो फिर खुदा को नहीं कर पाते, और लोग आपसे खुश नहीं होते। आप उनके लिए एंजेला हैव यू सीन जब आप किसी के लिए छोटी सी चीज़ करते हो वो और एक्सपेक्ट करते हैं, और जब आप वो चीज़ नहीं कर पाते, जब आप वो चीज़ें नहीं दे पाते, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ये फियोना हमारी पेरेंट्स, हमारी फैमिली भी यही कहती है कि हम कभी भी लोगों को कुछ नहीं कर सकते। Yes. कभी भी नहीं। Like they have very high expectations from us. अगर उनकी एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, वो चाहेंगे दूसरी पूरी हो, वो चाहेंगे तीसरी पूरी हो, वो आपसे और एक्सपेक्ट करते जाएंगे, एंड जब आप उनमें से एक भी पूरी नहीं करोगे, they will ruin your life. They will deny you and everything. They will say आपने मेरे लिए क्या किया है, but when जब आप खुदा के लिए ये चीजें करते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, आप उसे थोड़ा सा दोगे ना वो आपको भड़के देता है, आप किसी के लिए करोगे वो आपको इन रिटर्न में देगा नहीं, वो आपसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन जब आप खुदा से करोगे वो आपको देगा इन रिटर्न में।
All you have to do just deepen your relationship. yes, exactly. आप बस अपने अंदर मजबूत रहिए, Yeah. आप खुदा से गाइडेंस मांगिए अपनी मैरिजेस में एंड अपनी स्पेशली life में. अपनी लाइफ में Hmm. आप अपने आप को उसके अंदर मजबूत करें एंड प्लीज डोंट से लॉर्ड आई हैव नॉट डन दीज थिंग्स फॉर यू Hmm. बट से दैट खुदाया मुझे गाइड कर कि मैं तेरे लिए अगर इधर गलत कर रहा हूँ तो तू उस चीज को सही कर. Yeah. लोग मुझे एज अ टीचर जानते हैं, लोग मुझे एज अ प्रीचर जानते हैं, Hmm. लोग मुझे एक आप उनके लिए एक रोल मॉडल हो, Yeah. आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो. Hmm. एक्ट लाइक दैट. Hmm. आप दोनों लाइफ को साथ लेके चलोगे ना तो ना तो आप इस लाइफ के रह पाओगे ना आप उस लाइफ के रह पाओगे. Hmm. आपको एक लाइफ चूज करनी पड़ेगी. चूज दैट लाइफ. और जब आप खुदा के साथ अपनी जिंदगी चूज कर लेंगे ना Yes. तो फिर बस खुदा पे यकीन और भरोसा करें. Exactly. He will do everything for you. Exactly. Like the thing and the reference I have Yes. mentioned before. Yes. But when you just seek the first His kingdom Yes. and His righteousness and all the things and all the desires and everything, we're just going to add it. एंड मैं एंजेला आपकी इसी Hmm. बात में एक बात और करना Yeah. चाहती. खुदा भी आपसे पहले आपकी एफर्ट मांगता है. Yeah. आपसे पहले वो भी एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके लिए ये चीज करो. क्यों? आपको वो दुनिया में भी तो हर चीज पैसा है, वो भी मेहनत से कमाया जाता है. कोई जॉब आप लेने जा रहे हो उसके लिए भी आप पहले मेहनत करोगे, Yeah. अपने आप को तैयार करोगे, स्टडीज करोगे, Hmm. फिर आप उस जॉब के लिए सिलेक्ट होगे. Hmm. तो ऐसा ही तो खुदा भी है. Yeah. वो भी चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी करीब आए, Yeah. वो मुझे जाने, वो मुझे पहचाने, वो दुनिया की इन ख्वाहिशों में ना घूम के रह जाए कि एक वक्त पे आके वो पछताए. एंड आई हैव सीन दोज पीपल्स. मैंने जाना है, Yeah. मैंने देखा है दैट जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सिस्टर्स हैं, Hmm. लाइक अगर हम पिछली सोच देखें तो देर लाइक आपकी जवानी में अपने खुदा को देख के क्या करना है. Hmm. वो अपने बुढ़ापे में जब बूढ़े हो जाते हैं, जब खुदा आपको देखता ही देखता है, तब आके वो खुदा को चूज करते हैं. Yeah. That is wrong. But we have to mention here कि Yes. जब हमारे पास Christ है ना, we have Yes. Christ within us Yes. and just doing life with Him. Yes. तो फिर आपकी जिंदगी impossible से Yes. possible Exactly. है ना? Yes. Or I was just watching one podcast of the girlies. So they both just like, if you want to just take your Bible, and they were just like, oh, we have our coffee and we have our Christ as well. Okay. So that means they know that this is everything. This is the word, this Yes. book. Yes. Because this has everything. इसके पास सब कुछ है इसमें आपको खुदा ने हर चीज सिखाई है. आप लोगों के पास सीखने के लिए नहीं जाओ. आप खुदा के कलाम को पढ़ो, आपको दुनिया की Because बहुत this चीजें is the पता चलेंगी. everything, this book, Yes. only this Yes, book exactly. is everything. Yes, and I just want to encourage you guys that believe me and Angela that Yeah. please trust this. Yeah. Rather than trusting others, इस पे यकीन Just करो. trust your Christ. Yes, Oh. yes, you will be amazed by his miracles. You will be Oh. amazed. Yes. आप imagine नहीं करोगे वो आपकी लाइफ में क्या Yeah. चीजें करेगा. Because we have seen them and we want you guys to see those Yes. things. To all the girlies who are Yes. just watching this right now. Exactly. And we just want you to be very faithful in Christ. Yeah. ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो, ना तो Yes. खुदा आपको कभी आपका इनकार करे, Yes. ना तो खुदा से आप कभी पछताओ कि तूने मुझे इस वक्त क्यों नहीं संभाल रहा तू. Yeah. आप ऐसा करो, खुदा आपको हर चीज में उठाए. आप इस तरह से चीजें लेके चलो. I think Fiona, we have to move forward. Yes, sure. I'm so blessed Too. Thank by you. His presence. Yes. He is just going to do something really amazing Yes. through this podcast. Yes. Thank you, Jesus. Okay, Fiona, just let's move forward. And Okay. we have question number 3. It's just like how we can overcome our past life and start a new life with Christ Jesus. Okay. So Angela, I want to Hmm. add a reference here Hmm. to Corinthians Yeah. 5:7. Hmm. जिधर खुदा ने ये बात कही है Hmm. that जब आप मुझे कबूल कर लेते हो, जब आप अपनी न्यू लाइफ में स्टेप रखते हो, तो आपकी पुरानी जिंदगी फेड अवे हो जाती है, Hmm. वो खत्म हो जाती है.
and which is a very very Motivating. motivating verse. Yeah. कि खुदा देखो, आप दुनिया में इमेजिन करते हो जो हमने पहले बात की, लोग हमारी चीजों को नहीं छोड़ते. People are just like, नहीं तूने पिछले टाइम पे ये किया है तो you will never be you will- changed. yes. हाँ. आपने पहले ये चीज की है, आप चेंज हो ही नहीं सकते. आपने पहले ये चीज किया, आपका राइट नहीं बनता. इवन दो जब आपके पास्ट में इतनी चीजें होंगी ना, जब आप खुदा को कबूल करोगे तब भी लोग आपको लेट डाउन करेंगे. Exactly. बट खुदा नहीं चाहता. खुदा आपको हर तरीके से अपनाता है. उसने इतनी बड़ी बात बाइबल में लिखी है that जब तू मुझे अपनाएगा, जब तू एक नई जिंदगी में कदम रखेगा, तो तेरी पुरानी जिंदगी वही खत्म हो जाएगी. Wow. How amazing that. Yes, I just want to quote this verse in English as well, because if the person who are just Yes. watching us as a believer Yes. from different countries, so Fiona has taken from the word of God. 2 Corinthians 5:17 says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Yes. The old has gone, the new has come. Oh, this is my favorite verse. Yes. Because जब हम ये वर्स अपनी दिल में और जब हम इस वर्स के वसीला से अपनी लाइफ मूव ऑन करते हैं ना, लाइक फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, फ्रॉम आवर पास्ट थिंग्स, तो बहुत ही इंकरेजिंग होती है, बहुत मोटिवेटिंग होती है कि हाँ ये खुदा का कलाम इस आयत के वसीले से हमारे से ये कलाम कर रहा है कि जब खुदा पे ईमान लाते हैं, खुदा के अंदर और बढ़ते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जो अपनी पुरानी ज़िंदगी जो पास्ट होता है ना, तो वो खुदा के ऊपर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं Yes, होता. exactly. And आपको पता है जब हाँ. आप अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ते हो ना, Yeah. शैतान आपको बहुत तंग करता है. Hmm. वो आपको हमेशा फ्लैशबैक्स देगा. Hmm. वो आपको याद दिलाएगा, यार मैं तो खुदा के साथ इतना टाइम से चल रहा हूँ पर मेरे लिए चीजें नहीं हो रही, मेरे लिए रास्ते नहीं खुल रहे. हालांकि मेरी पिछली जिंदगी में तो मैं सब चीजें कर रहा था, मेरे लिए हर चीज हो रही और ऐसे शैतान उसको कर रहा हो कि we have to give up. यस on आपको everything. बहुत कोशिश करेगा तेरा गिव अप कर दो, तेरा छोड़ दो, आप फिर से अपनी पास्ट लाइफ में चले जाओ. बट हमारा खुदा कहता है जब तूने एक नया स्टेप रख लिया, जब तूने एक नए चैप्टर में जब कदम खुदा रख को लिया, बिलीव किया है तो खुदा- तब खुदा yes. के उसके साथ रह के पुरानी चीजें को इतनी खत्म कर दो. खत्म. यस We have to end that. यस. एंड इफ वी सी, अगर हम रिलेशनशिप से लें, तो जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप आपका नहीं चल पाता, आप उसे छोड़ के एक नई जिंदगी में कदम रखते हो ना. जब आपको एक जॉब नहीं समझ आती तो आप नई जॉब ढूंढते हो. वो जॉब आपको कभी कभी उसमें भी स्टार्टिंग में हर्डल्स आती है, Yeah. बट इन द एंड वो भी आपको सुकून देती है. हर्डल्स, परेशानियां, Yeah. दुख हर चीज में आएंगे, Yes. बट ऑल यू नीड टू डू इज कंसिस्टेंसी In everything. in everything. Yeah. Yes, because every relation, everything needs consistency. In everything you are Yes. just doing. Yes, exactly. Especially when you are just doing life with Yes. God. And especially जब आप अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हो, प्लीज अपनी पिछली जिंदगी को मत याद करो. Yeah. Don't, because when you आप जब कोशिश भी करोगे ना, चलो आप फॉर सपोज अपनी पिछली जिंदगी में फिर से चले जाते हो, तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, आपको पीस नहीं मिलेगा. And you were just like, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और मैं गिव अप करना चाहती हूँ. हाँ. I just want my life back. Yes. जो पहले हो रहा था वही हो जाए. Yes, exactly. And आपको नहीं पता कि आप एक चीज को सैक्रिफाइस करोगे ना, खुदा आपको क्या पता उससे बहुत बड़ी चीज देना चाहता. He will just going to open new doors Yes. for your life. Yes. And the things जो आपकी लाइफ में आपके पर्पस में है वो उसने ऑलरेडी स्टोर की हुई है. Yes. आपकी डेस्टिनी आपको नहीं पता. इवन आपके फ्रेंड्स, एक किसी इंसान को भी नहीं पता Yes. कि आपकी डेस्टिनी और आपके खुदा ने आपके लिए क्या मंसूबा, क्या Yes. प्लान, सब कुछ रखे. बिकॉज खुदा ने, अगर हम फिर से कलाम से ये रेफरेंस दें, तो हमें खुदा ने कहा है कि तू अपने कल की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि कल का दिन आप ही डिसाइड Yeah. करना कि वो क्या किस चीज को लेकर चलेगा. तो आप अगर आप यही सोचते रह जाओगे ना कि यार पीछे मैं बहुत अच्छा था, पीछे मेरी जिंदगी में ये चीजें थी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. आप कभी खुदा के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे. आप उसको वो चीजें नहीं दे पाओगे जो वो चाह रहा है आपसे, और फिर आपकी लाइफ में जब वो चीजें नहीं होंगी
तो आपको रिग्रेट होगा, तो आप फील करोगे दैट नाइट। एंड एक टाइम पर आके जब आप देखोगे यार उसको तो खुदा ने दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, तो व्हाई डोंट यू गाइस फील दैट हमने भी तो वो चीज नहीं की जो उसने की, है ना? हम भी तो उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है, हम भी तो अपनी 2 लाइफ्स को लेके साथ चले। Okay, we have to move forward. और मैं अपना क्वेश्चन में फोन करेंगे. It's just like I think ये आपका फेवरेट है. Yes. है ना? Yes, it is. Because before the night we were just discussing कि फियोना और मैं जब रात को इस चीज़ के बारे में सब चीज़ें कर रहे थे, सब चीज़ों की प्लानिंग्स कर रहे थे और लाइक वी वर जस्ट स्टडिंग अबाउट आवर पॉडकास्ट एंड अबाउट आवर टॉपिक. तो हम लोगों ने एक दूसरे जब इनकाउंटर किया इस बारे में तो वी हैव डिसाइड कि हम ये चीज़ें शेयर करेंगे और ये बातें, ये एक्सपीरियंसेस स्पेशली. तो फियोना का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जस्ट वांट टू टेल यू दैट. Yes. Oh, Fiona, I love you. Me too, Angela. Okay. You know, we have question number 4. Let's start. Okay. Okay. Question number 4 we have is that how God walks us through sufferings. Yes. Oh my God. You know what? I want to tell you that मैंने इस पे बहुत बार बात की है. And I have always told people that आपकी sufferings, आपका जो आगे आने वाला खुशी है, good news है. It will make us more strong. Yes. Yeah. आप internally उस चीज को अभी नहीं देख रहे जो खुदा देख रहा है. उस थोड़े से टाइम की सफरिंग के बाद जो आपकी जिंदगी में खुशी आएगी वो आपको नहीं पता. And in the word of God also say in the Bible that you are just watching and you are just going through from different days. और हाँ माना कि पूरा दिन भी उस मायूसी, उस हर्डल्स, उस डार्कनेस और उस एंजाइटी डिप्रेशन में गए, लेकिन जब दूसरा दिन आएगा ना you in the morning you will just going to rejoice. क्योंकि खुदा सब चीज़ें डिफरेंट कर देता है. हाँ, yes, and Angela, if we see in Isaiah 41, तो हम उधर देखते हैं कि खुदा ने हमें कहा है कि जो सफरिंग्स है वो तेरी जिंदगी में आएंगी, बट अगर तू खुदा को अपने पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगा तो you will know that how you can overcome that sufferings. और especially I just want to add that verse as well. मैं एक रेफरेंस और ऐड करना चाहती हूँ that जो हमारी परेशानियाँ हैं खुदा ने हमें कहा है कि तू अपनी सारी परेशानियां, अपने दुख मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है. अमेजिंग ना? आपको कौन कहते हैं आप अपनी परेशानियां मुझे दे दो? आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं. एंड एक हद तक वो भी आपको कहेंगे यार मतलब तेरी परेशानियां तो तेरी हैं, हम तो नहीं खत्म कर सकते. आपके फ्रेंड्स आपकी एक परेशानी में रहेंगे, आपकी 2 परेशानी, आगे आपकी परेशानियों को कौन देखेगा? और इमेजिन करो हमारे खुदा ने कहा कि तू अपने परेशानी, अपना दिल, अपनी हर चीज मुझे दे दे, मुझे तेरी फिक्र है. Give all your worries, all your anxieties, all your burdens. Yes, exactly. मुझे तेरी फिक्र है. Yeah. That means he cares for us. आपको पता है मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें वो एक लड़की है, वो रो रही है एंड वो बेंड डाउन होकर रो रही है. पीछे से खुदा आता है एंड यू नो वो उसका छोटा सा टैडी है, वो फट गया है पूरा, वो उस चीज पे रो रही है एंड पीछे जीसस खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ा टैडी है. दैट मींस इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो छोटी चीज है वो जा रही है पर खुदा ने हमारे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज रखी है. Because he stored many things for you. Like you cannot imagine कि वो आपकी above and beyond में सोचता है. Exactly. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ये जो आज आप पे मुश्किल आई है ये कल के लिए आपके लिए कितना बड़ा सुख साबित होगा. आप किधर अमेज्ड हो जाओगे उसकी चीजों से. एंड फिर से all you have to do is pray. आप लोगों को जा के नहीं बताओ that मेरी लाइफ में ये हो रहा है. I have experienced it. जब आप लोगों को बताते हो ना वो Believe me, वो आपकी उधर तो सुनेंगे बट आपको किसी और से पता चलेगा यार ओ माय गॉड मैंने इसको बताया था उसने उसको भी बता दिया एंड तब आप डाउन फील करोगे.
पर जब आप खुदा से बात करोगे, that will be on you and with God. और God फिर वो will उस never चीज tell anyone. yes, और फिर वो उस चीज के लिए आपको easy कर देगा, Wow. आपके लिए रास्ते बनाएगा, Oh. वो आपकी परेशानियों को आपसे दूर कर Yes. देगा. Just believe on him. बाइबल में इतने इतने मौजे हैं जब खुदा अंधों को आंखें दे सकता है, जब खुदा भूखों को खाने के लिए दे सकता है, जब खुदा आप कहीं गिर रहे होते हो आपको उठा सकता है, जब आप खुदा से कुछ भी मांगते हो वो आपको दे सकता है, तो आपकी परेशानियों को क्यों नहीं दूर करेगा. एंड एंजला, हम इस बारे में बात करेंगे ना that your words have power. आपके जो वर्ड्स हैं उनमें बहुत पावर है. Exactly. मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो that खुदा ने हमारे लिए ये चीज कर दी है, बिलीव में वो कर देगा. ईमान से मांगो that वो ये चीज हमारे लिए हो गई है. जब भी प्रे करो रिमेम्बर दिस थिंग. प्रे करते हुए ये जरूर बोलो, अगर कोई चीज मांग रहे हो, अगर किसी चीज से सफर कर रहे हो तो आपको चाहिए then आप बोलो कि खुदाया मुझे पता है ये चीज मेरे ऊपर से हट गई है एंड वो चीज हट जाएगी. Wow. मुझे पता है ये चीज तूने मेरे लिए कर दी. Yes. It's just like so amazing. Yes, exactly. Just we have to trust the process. Yes, exactly. Trust his plans. You know, I just want to mention one reference and one scripture here. The word of God says in Proverbs chapter 13 और उसमें लिखा हुआ है trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Exactly. Submit all your ways and things to me because he cares for you. Yes, yes. Wow. And हमें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी कल क्या होगा लाइफ में, क्योंकि you don't know, life is so unpredictable. आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कल क्या होगा. Yeah, you just have to trust all your things, all your Exactly. process to him Exactly. and give it to him. Yes. जब भी आप प्रे करो, Yeah. आप उससे अपनी सफरिंग्स के लिए प्रे करो. आप लोगों से उम्मीद रखोगे ना तो they will break your heart. They will make you feel that आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं and they are very happy and you know वो ऐसा आपको फील करवाएंगे that आप अपनी लाइफ में किसी चीज में कमी करो. Yeah. बट when जब आप खुदा के पास जाओगे वो आपको उन सफरिंग से भी निकालेगा और वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा भी लेके आएगा. Wow. And you will just going to know कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. Yes, exactly. Yes. Wow. Yes. It's so amazing. खुदा बहुत अच्छी तरीके से everything और ऐसा लग रहा है कि खुदा ने बहुत सारा कलाम, बहुत सारी बातें हमारे अंदर फील ऑफ कर दी है. Yes. And I feel like जब वो चाहता है अगर आप सबकी लाइफ में because हम सब कुछ करके उसके बाद सीखते हैं. हम सब अपनी लाइफ में अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. Nobody can you know Yeah. learn things बचपन से ही पैदा होते ही वो अपने दिमाग में चीजें नहीं सीख के आता. उसको लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं. आपको पता है जब आप अपनी लाइफ में फील करोगे आपको बहुत लोग छोड़ रहे हैं Yes. पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको वो पकड़ है. Yeah. आपको लगेगा आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ रहे हैं, आपको लगेगा आपकी फैमिली आपसे दूर जा रही है पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके साथ खुदा है. एंड एंजेला यू नो व्हाट जब आप आई फील लाइक बिकॉज मेरे डैडी बहुत दूर होते हैं मुझसे सो व्हेनेवर आई फील द नीड ऑफ माय डैड आई ऑलवेज go to my Jesus and say that I know that आप मेरे खुदा हो, आप मेरे बाप हो. Yeah. हमारे रिलीजन में ऐसी बात है कि हम उसको बाप कह के बुला सकते हैं, हम उसे एज अ फादर बुला सकते हैं. देन आप हमारे फादर हो, यू आर आवर वाइफ. सो आई नो आप मेरे साथ हो. एंड उसी टाइम राइट अवे आई कैन फील दैट प्रेजेंस and that is what you have to feel. क्योंकि आपकी दुनिया में I have seen so many girls जिनके सर पे बाप नहीं है, जिनके पेरेंट्स में कोई ना कोई नहीं है. Yeah. You don't have to feel alone. You don't have to feel worried. वो तो सजावनी बात है. Yes, But you have your heavenly Father. Exactly. Yeah. जो आपकी हर नीड प्रोवाइड करेगा, जो आपको हर रास्ते में आपके साथ रहेगा, Yeah. जो आप कभी नहीं छोड़ेगा. Exactly. Yes. So अपनी सफरिंग्स को अपने ऊपर हावी ना होने दो. ऐसा ना हो कि वो आपको एक टाइम पर आके
इतना आप पे हावी हो जाए कि आप खुद में ही इतना फील करने लग जाओ that I cannot do anything. Because that is true. जब आप पे परेशानियाँ आती हैं वो आपको इतना गिरा देती हैं जब आप खुदा के मुताबिक नहीं चलते. एंड हमारा आज मेन रीज़न ही ये है that आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट खुदा के तरीके से चलाओ. Wow. Yes. I think Fiona, we have to Yes, move forward. yes. We have to just do our next question. Yes. Is that it's so amazing. It's just like how do we develop our personal relationship with God? ओके सो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी दैट अगर हम देखें जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 तो इधर खुदा कहता है दैट तुम लोग मेरे कमेंड्समेंट्स को पूरा करो, मेरी बातों को पूरा करो, मेरे कलाम को पढ़ो. Yeah. ऑल यू हैव टू डू जब आपको खुदा से रिश्ता मजबूत करना है, जब आप चाहते हो वो आपकी सुने, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके कमांडमेंट्स को मानना पड़ेगा, आपको उसके रास्तों पर चलना पड़ेगा. ओनली दैट वे यू कैन डेवलप अ रिलेशनशिप विद हिम. ओनली दैट वे वो आपको करीब से सुनेगा. जब आप देखोगे, जब वो देखेगा यार मेरा बेटा तो मेरी हर बात को सुन रहा है, यार वो अपनी लाइफ को मेरे मुताबिक लेके चल रहा है. बाइबल पढ़ो, प्रे करो, स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन इन प्रेयर, बिकॉज वो एक रास्ता है जो आपको खुदा के करीब लेके जाता है. जब आप आंखें बंद करके प्रे करके सिर्फ ए खुदा ही बोलते हो तो आपको कितनी अपने अंदर पावर फील होती है. आप जब प्रे करते हो आप ईमान से करो दैट वो मेरी सुन रहा है. उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप आप करो. आपको चाहिए, आप जो दुनिया में रिलेशंस ढूंढ रहे हो, आप जो दुनिया में अपने फ्रेंड्स ढूंढ रहे हो, आपको चीजें नहीं मिल रही, आप जो दुनिया से उम्मीदें रख रहे हो, आप खुदा से एक मजबूत रिलेशन बनाओ. आप उससे कहो कि मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ. आप उससे मांगोगे वो आपको देगा. आप उससे बोलो, जब आप उससे कहोगे कि मुझे तेरे करीब आना है, वो आपको वो गाइडेंस देगा. Yeah. आप जब प्रे करोगे, आप जब बाइबल पढ़ोगे, तो यू विल नो कि खुदा किस तरह से मेरे करीब आ सकता है. Wow. आपको राइट पाथ पे चलना है. आपको अपनी लाइफ को दूसरों की तरह लेके नहीं चलना. Because every single person have their own life. Yeah, and you know, Fiona, with Christ, Yes. everything is just yours, and it will just give it to you, Yes, exactly. and it will just going to add it to you, which is meant for you. Yes, exactly. और खुदा के साथ हर चीजें possible है. Exactly. Even the impossibilities in your life, even the impossibility in your everything which you are just doing. Yes. But खुदा के साथ हर Yes. चीज possible. Exactly. And whenever you feel like आपके पेरेंट्स आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, whenever you feel like आपके फ्रेंड्स आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, come to God, say him. He is your right parent. He is the one जिसने आपको बनाया है. Yeah. He is the one जिसने आपकी डेस्टिनी लिखी है. He is the one जो आपको आगे लाइफ में और चीजों में मजबूत करेगा, Yes. जो आपको चीजों को देगा. Don't feel discouraged. Don't feel कि मैं ये नहीं कर सकता. Say that मैं सब कर सकता हूँ. Wow. And I can tell you guys that when I was alone, I asked him. मैंने उससे मांगा that मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ. And see, उसने किया. He said, तूने मुझसे मांगा, मैंने तुझे दे दिया. So when you will ask him, मांगो आपका जो दिल करता है. हमारे खुदा ने किसी चीज से मना नहीं किया. उसने कहा तेरे जो दिल की ख्वाहिशात है, मैं तेरी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी करूँगा. Yes. I'm just getting those. Yes, we do. But we are very excited. And we are just like, we are just fueled up Yes. with the Holy Spirit right now. Yes, exactly. Yeah. You know the next question Yes. we have? Yes. It's just my favorite. Yes, Angela told me that मैं इस question पे बहुत
बात करना चाहती हूँ, and like this is very important for every girl life. Lives. Yes. And we are very excited to share that question with you guys. So let's. But Shona, Yes. after we're just going to start that question, I just want to tell you all कि the thing she has mentioned, she has delivered और जो उसने बताया Fiona ने, Yes. तो वो ये है कि we should have to develop Yeah. our deeply relationship with God. Yes. और जब हम खुदा का deeply relationship जब बनाते हैं और उसको strongly हर चीज़ खुदा से जिंदगी करते हैं, तो you don't have any impossibilities in your life. Exactly. Everything is very possible with you. Or if the girls are watching us right now, we want to empower you, want to encourage you, want to motivate you. Okay, you have to develop your relationship with him. और सब कुछ बहुत easy हो जाएगा. Yes, exactly. Just trust him. वो आपको हर चीज दे देगा. Yeah. वो आपसे इतना प्यार करेगा, वो आपको कभी आपकी पेरेंट्स की नीड नहीं फील होने देगा, वो आपको कभी आपकी लाइफ में ये नहीं फील होने देगा कि आप यहाँ पे कम हो. इवन वो आपको इतना उठा देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे. Wow. Just stay consistent. Just believe on what he said. आप उससे अपना रिश्ता बनाओ. Yes. क्योंकि दुनिया में रिलेशनशिप्स बनाओगे ना, आपको उसका कोई आउटकम नहीं मिलेगा. आई नो दैट जब आप एक नया रिलेशनशिप बनाते हो किसी नए इंसान से, तो वो एक नई चीज आपकी जिंदगी में करता है. अच्छी चीजें भी आती हैं बट बुरी चीजें भी आती हैं. Yeah. बट खुदा आपको He allows both things. Yes. Because he is just Yes. testing your faith Exactly. at that moment. Yes. Yes. Okay, I think we should have to move Yes. forward. Or Fiona, कर दूँ? Yes. Oh. Yes. Okay, because I just wanna ask her allowance. You can say Yes. into my life. We both are just delivering the word of God. We have a very great opportunity through the lens of faith. Who are just watching us right now, or we are very blessed to be right here. Or the question I just wanna share here, जो हमारा question number 6 है, the second last question, Fiona, इसके बारे में हम बताएंगे कि we should have to see yourself worthy in the eyes of the Lord. Yes. Because खुदा आपको उन आँखों से देखना चाहता है. Yeah. So, we have question number 6 is that how we can overcome that fear when girls feel unworthy and don't see themselves from the eyes of the Lord. When I was just making this question, before when I was just studying for this podcast, तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि क्योंकि I have experienced this thing into my life as well. काफ़ी लड़कियों से मैंने बात सीखी और की भी, और उन्होंने अपनी बात ये वाली बात अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताया भी कि they feel very unworthy for themselves और उनको नहीं पता कि खुदा उनके लिए क्या चाहता है. They don't know their purpose. और उनको नहीं पता कि खुदा ने उनके लिए क्या प्लान्स रखे हुए हैं इन फ्यूचर. बट दे वर जस्ट लाइक कि हाँ अब ऐसी जिंदगी जा रही है और ऐसे ही दे वर जस्ट गोइंग टू पास years, days and like months. और इसी तरह से हमारी जिंदगी लाइक गुजरती रहेगी. लेकिन इसलिए ये मैंने क्वेश्चन चूज़ किया इस पॉडकास्ट के लिए और मेरे दिल के आया था मैं क्यों ना इस बात पे इस क्वेश्चन और इस चीज़ पे बात करूं और मैं उन लड़कियों को बताऊं जिनसे ये बात रिलेट करती है कि दे आर जस्ट सीइंग देमसेल्व्स और उनके दिल में कोई डर है, देयर फियर है और वो ऐसी चीज़ है कि वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही और वो बस दे वर जस्ट लाइक हम लोग की बस इतनी सी जिंदगी है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन फ्यूचर. Yes, exactly. And I want to add more and more. इधर मैं ये बात करना चाहूँगी that अपने आप को उन आँखों से देखो जिन आँखों से खुदा देखता है. Yes. अपने आप को जब आप मिरर में खड़े होके अपने आप को बोलोगे ना that I am worthy enough for everything, that I can do anything. Yeah. Because of His will, I can do anything. Yes. आप इमेजिन करो जब आप मिरर में खड़े होके अपने अंदर अपने से बात करोगे, जब आप अपने आप को बोलोगे that I am beautiful, I am beautifully made because He has made me. Yeah. आपको हमें तो खुद से इतना प्यार होना चाहिए क्योंकि हमारा जिस्म तो खुदा का है. Yes. हम उसकी सूरत पे बने हैं.
तो हमें चाहिए कि हम कभी भी अपने मुंह से वो वर्ड्स निकालें ही नहीं, बिकॉज आवर वर्ड्स हैव Power. यस, वी शुड से। हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत इनकरेज करते हैं, हम एक दूसरे को इतना कहते हैं दैट इवन दो आपने मेकअप नहीं किया हुआ, इवन दो आप नेचुरल हो, But you're looking but very you're pretty pretty. and beautiful. Yes, because you have to say. जब आप खुद को ब्यूटीफुल नहीं बोलोगे तो no one will say that you are beautiful. And especially you don't have to need anybody to say that आप beautiful हो. You don't have to, आपको किसी पे रहना नहीं है कि वो आपको बोले कि आप प्यारे हो. Because you're already beautiful, you're already loved, Yes. precious in his life. Exactly. In his life, and you can say in his eyes. Yes. Especially when you're just feeling unworthy for yourself. Exactly. And you have that fear in your heart. Yes, exactly. Yeah. And unworthiness is something जो आपकी लाइफ को बर्बाद करती है. आप इमेजिन नहीं करोगे, आप इतना पीछे जाओगे इन बातों से, आप इतना पीछे जाते जाओगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा बिकॉज आप अपनी वर्थ को खुद आजमा रहे हो और खो भी रहे हो. खो भी रहे हो. यस, आप अपनी वर्थ को खुद नहीं उस जगह पे देख रहे. जब आप किसी की लाइफ में जाते हो, यू सी कोई इंसान, आपको उसको किस तरह से पता चलेगा कि यार आप ये फील कर रहे हो, वो आप बता रहे हो कि यार मैं सोच रही थी मेरी ये चीज नहीं प्यारी, मैं सोच रही थी यार Because that person is just finding weak point in you. Yes, exactly. People find weak points. उनको weak points चाहिए. But खुदा ने आपको जिस तरह का भी बनाया, you are brown, you are white, Yeah. you have colored eyes, you have brown eyes. आपके बॉडी पे अगर किसी भी तरह के मार्क्स हैं, आपकी बॉडी, आपको किसी भी तरह की एक्नी है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को ओवरकम करो. उससे बोलो that I know, I believe that I am pretty and I feel like मैं अपने आप को खुदा की नज़रों से देखती हूँ. आपको कोई भी नहीं हिम्मत करेगा that कोई आपको बोले that आप pretty नहीं हो, because they know इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो खुदा की तरफ से आता है. Yes. और जो कॉन्फिडेंस उसने इसको दिया है. जब आप ही खुद अपने आप को इतना गिरा दोगे ना, तो फिर लोग आपको गिराएंगे. माय मामा ऑलवेज सेज एंजेला दैट जब आप खुद की कदर नहीं करते हो ना, तो फिर लोग भी आपकी कदर नहीं करते. जब आप अपने आप को गिराते हो ना, तो फिर लोग आपको और गिराते हैं. Yes. तो ऑलवेज रिमाइंड दैट गॉड डोंट वांट यू गाइस टू फील अनवर्दी. खुदा चाहता है दैट आप इतना भर जाओ स्पिरिचुअली, इतना आपके अंदर खुदा आ जाए, क्राइस्ट आ जाए कि आप अपने हर वर्ड में बोलो दैट आई नो आई एम प्रिटी बिकॉज मैं उसकी छवि में बनी हूँ, Yeah. बिकॉज उसने मुझे बनाया है, बिकॉज आई एम द डॉटर, आई एम द सन ऑफ हिज. Yeah. Yes. And Fiona, I just want to mention one scripture because you are saying कि हम बने हैं or like in that way. So the word of God also says in Psalm, in Psalm 139, you are fearfully and wonderfully made. Yes. और आप fearfully और wonderfully made है. और फिर तब क्यों आपके दिल में वो डर, वो शक और वो रह कि मैं unworthy हूँ, Yes, मैं कुछ नहीं कर पता है सकती. Angela, I have seen those girls जो सिर्फ अपने अंदर की कमजोरी कि यार मैं प्यारी नहीं हूँ, तो मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मुझे लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, मुझे लाइफ में आगे वो चीज़ नहीं मिलेगी. बिलीव मी, खुदा ने आपके लिए हर चीज़ बनाई है. जब आप पैदा हुए थे, आपके पैदा होने से पहले उसने आपकी डेस्टिनी में हर चीज़ लिखी. एंड इफ अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो आपके लिए सही नहीं है. उसका ये मतलब नहीं है कि आप प्यारे नहीं हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिल रही. मैंने देखा है लड़कियाँ अपने अंदर इतनी हो जाती हैं कि यार मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, मैं इतनी पतली हो गई हूँ. आपको अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस लाना है. आपको खुद कहना है कि मैं जिस तरह की भी हूँ मैं प्यारी हूँ, सो दैट आपको जो आपके सामने वाला पर्सन है वो भी प्यार करे. यस. और पता है, मैं एक चीज़, मेरी पिछले दिनों किसी से बात हुई थी, सो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप किसी चीज़ पे नाशुक्री करते हो ना, जब आप अपने अंदर या अपनी किसी चीज़ को
सोचते हो या उस चीज़ पे कहते हो कि यार नहीं ये चीज़ सही नहीं है, खुदा को वो चीज़ पसंद नहीं आती। खुदा हमेशा चाहता है Because you are not doing thanksgiving. grateful नहीं हो। Yeah. Yes, exactly. आपको खुदा नहीं बनाया है, आपको पता होना चाहिए Yeah. कि आप प्यारे हो। And you know, Fiona, the word of God in Ephesians says, like chapter 2 and verse 10, when you go through the Bible, तो उसमें भी यही लिखा है, for we are God's handiwork and created in Christ Jesus to do good things, good works, which God prepared in advance for us to do. Yes, exactly. और because I have mentioned this scripture here, कि बाइबल में भी यही लिखा है, we are God's handiwork. Yes, exactly. He has made us, हमें खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि हम दुनिया पे आके सोचें कि यार हमारे अंदर ये चीज़ नहीं सही, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं सही। आपका मकसद, आपका पर्पस डिफरेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। आई नो आप अंदर से ब्यूटीफुल फील करोगे ना, आप बाहर से ब्यूटीफुल फील करोगे। आप जिन स्कार्स पे आज सोच रहे हो ना दैट मेरे अंदर ये स्कार्स हैं, आपके वो स्कार्स को खुदा उस तरह से यूज करेगा ना कि आपकी वही आपके लिए एक अट्रैक्शन बन जाएगी। पीपल आर गोना अट्रैक्ट फ्रॉम दैट थिंग्स। पीपल आर गोना से दैट हमें आपकी ये चीज बहुत पसंद है। क्यों? बिकॉज आप उसको ये चीज बता रहे हो दैट मुझे मेरी ये चीज बहुत पसंद है, दैट मेरी बॉडी पे ये स्कार है, मेरी बॉडी में ये चीज है एंड आई लव दैट थिंग। मुझे उस चीज से डर नहीं लगता क्योंकि वो खुदा ने already दिया। एंड यू जस्ट हैव टू से दैट आई एम ब्यूटीफुली मेड। मिरर में खड़े होके खुद से बोलो दैट यू आर ब्यूटीफुल। अपने आप को चलते चलते रिमाइंड करवाओ दैट यू आर ब्यूटीफुल। आपको कभी भी ना शुक्रिया नहीं करनी है, grateful रहना है। Yes, and you know, when you want to overcome this fear, that you are not worthy in His eye, for yourself and in His eyes as well. So I just want to recommend and I just want to motivate and empower you all is that just immerse yourself in the scripture. Or second point I have for you that pray and seek God's guidance and connect with the faith community. Exactly. And it will just going to support you. It will just going to do very great things in your lives. और आपको लगेगा yeah I'm worthy in His eyes. Yes, and all you have to do is you have to see yourself from the eyes of the Lord. I just want to add one more thing. Yeah. जो आपकी surroundings है, Yeah. that is the main resource. वो आपके लिए एक ऐसी चीज है जो आपको आगे भी बढ़ाएगी, जो आपको पीछे नहीं करेगी। बिकॉज आप जिसके साथ बैठ रहे हो, आप देख रहे हो उसकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। चूज वाइजली। हमने पहले भी बात की, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, सराउंडिंग हो, आप हर चीज को अपने ईमान से, अपने खुदा से गाइडेंस से मांगो दैट वो चीज आपके लिए सही है या नहीं सही। सो दैट वो, क्योंकि कभी कभी आप रॉन्ग गैदरिंग्स में चले जाते हो तो आपकी लाइफ एकदम एक डिफरेंट चैप्टर ले लेती है। आपके फ्रेंड्स जो आपके रोज साथ होते हैं, स्पेशली दिस इज फॉर द गाइज, जो लड़के हैं वो रोज अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो जाते हैं। मैंने देखा है कुछ लड़के गेम्स पे लग जाते हैं, मैंने देखा है कुछ लड़के बुरी चीजों में लग जाते हैं। क्यों? वो देखते हैं यार हमारे साथ वाला दोस्त ये चीज कर रहा है, कुछ सैड म्यूजिक, सेकुलर म्यूजिक में लग जाते हैं। एग्जैक्टली। और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। क्यों? वो आपकी लाइफ में चीजें नहीं होती, पर आपकी फ्रेंड की लाइफ में है, आपके पार्टनर की लाइफ में अडैप्ट हो जाती है उधर से। एग्जैक्टली। आप उन चीजों को देख रहे हो, आपको वो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप उन चीजों की तरफ चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाई फ्रेंडशिप एंड पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू चूज wisely. यस, एग्जैक्टली। आपको वो चूज करना है जो आपको खुदा के और करीब लेके जाए, जो आपको इन चीजों पे बोले कि यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप अपनी सराउंडिंग ऐसी रखो जो आपको हर वक्त बताए that they are proud of you, and you should also feel proud of yourself, so that आपको हर बंदा बोले that आप जो भी कर रहे हो you are doing amazing, that आपको खुदा ने बहुत प्यारा बनाया है।
So अपने अंदर वो चीज लेके आओ, yes. खुद से बोलो that you are Yeah, just see yourself from the eyes of the Lord. Yes, exactly. क्योंकि वो हमें बहुत प्यारे तरीके से देखता है, जिस तरह हमारे माँ बाप देखते हैं ना. Even though for us girls, अगर हम मेकअप करते हैं, so our parents says that आप without makeup ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो हमें naturally पसंद करते हैं. इसी तरह हमारा खुदा हमें internally, हमें बाहरी naturally हमें पसंद करता है. इसी तरह आपके पार्टनर को आपको पसंद करना चाहिए. आपको स्कार्स, आपके वो स्कार्स उसको एक अट्रैक्शन लगनी चाहिए. आपके वो स्कार्स, आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पसंद, बट स्टिल आप उस चीज को ओवरकम करने के लिए खुद को कह रहे हो दैट वो पसंद है. आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको बोले दैट आपके अंदर ये स्कार है, ये मुझे बहुत पसंद है. And this is perfect for me. This is perfect for me. You are perfect for me. Because everyone has scars. Yeah. हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई स्कार है. Yes. I don't know if वो स्कार आपकी बॉडी पे, आपकी लाइफ में है, बट हर किसी की लाइफ में है. Yes. सो अपने लिए वाइजली चुनो, अपने लिए वाइज वर्ड्स बोलो, अपने लिए विजडम मांगो, अपने लिए वो खुदा का प्यार मांगो जो वो आपसे करता है, सो दैट वो प्यार आप लोगों में ना ढूंढते फिरो. जब आप लोगों से प्यार मांगते हो, जब आप लोगों में प्यार देखते हो अंजला, वो आपको और तोड़ देते हैं, बिकॉज़ आप उनसे प्यार मांग रहे हो. Because you don't feel empowered. You Yes. don't feel motivated from Exactly. yourselves. कि सबके अंदर खुदा का प्यार है. Yeah. And I just want to say one thing, that जब आप किसी से प्यार मांगते हो ना, वो आपसे और भागता है. यार वो कहता है ये क्या हर वक्त मुझसे टेंशन मांग रही है, ये क्या हर वक्त मुझसे प्यार मांग रही है, ये क्या हर टाइम बस चाहती है कि मैं इसे बोलूं कि नहीं यार तू प्यारी है, नहीं. पर हमारा खुदा है जो वो कभी नहीं भागता. वो हर वक्त कहता है जिस वक्त तू मेरे हजूर बैठेगा बैठेगी, मैं तेरे हजूर हाजिर हो जाऊंगा. मैं तेरे स्कार्स को तेरे लिए एक अट्रैक्शन बना दूंगा. मैं तेरे स्कार्स को खत्म कर दूंगा. पीपल विल फील कि वो स्कार्स तेरे फेड अवे हो गए. कोई भी तेरे उन स्कार्स को पॉइंट आउट नहीं करेगा. Wow. Yes. Wow. Yes. So we just. Yes. I also love this question. You know, this is so very amazing, so amazing you know? because I feel beautiful. And Angela, I want to say that you are beautiful. And yes, everyone have to say themselves. जब हम pray करते हैं, जब हम अपने parents के साथ बैठ के pray करते हैं, friends के साथ बैठ के pray करते हैं, तो tell them that you are beautiful. And you're fearfully and wonderfully made. Yes, exactly. Exactly. Okay, this question is one of my favorite question, which we have discussed, that how we can overcome that fear. A fear of unworthiness, fear of darkness in your life, or Yes. fear of that thing, कि हम उसको overcome कैसे करें, you know. But खुदा ने अपनी स्क्रिप्चर में, अपनी बाइबल में और खुदा के कलाम में कुछ यूँ लिखा है कि you are fearfully and wonderfully. Or the last thing I just want to mention here, that you should have to see yourself from the eyes of the Lord. Yes. Or yes. everything will just going to be so beautiful into your life. Yes. और वो बहुत अच्छा हो जाएगा. Yes. Okay, everyone, my girls, we are just Yeah. looking forward and just move forward और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. और it was just going to be our last question. Yes. Question number 7, our last question. Or this is the question Fiona chose. Yes, because I wanted to, you know, ये question is very relatable, and Yeah. I want you guys to आप लोग हमें बताओ that yes you are facing this and आपकी लाइफ में इस चीज को जानने के बाद ये काम हुआ. And this question is Fiona's favorite. Yes, And this is mine as well. And we will love to share about Yes. this thing. हमने But, जो चीजें एक्सपीरियंस की, that things that जो मैंने और एंजेला ने डिस्कस की, we want you guys to know, yeah. want you to be encouraged. Wow. Okay, let's move forward, Fiona, and let's cover the last question of our podcast. We are ready, Angela. Yeah, we're ready. Yes. This is our last question. Is that
how we can overcome and observe ourselves for not falling for wrong guy, for toxic relationship, and doing not like life with Jesus, and in that way and in relationship. So this is the question Fiona loves, and me too. So this is the last question, and we would love to hear about the things Fiona have mentioned and Fiona has in her heart to share over here. So Yes. let's go, Fiona. Yes, okay, so let's start this, Angela. So हम इस चीज को बाइबल में अगर देखें, we can see in Mark 10:9 where God has clearly mentioned that जिसको खुदा ने बनाया है, no one can separate. No one can, and I want to add one more thing that खुदा ने हमें बाइबल में बताया है that जो आपका पार्टनर है, he'll be your safe place. He'll be your support system. He'll be your guide. And I just want you guys to feel जो आप पार्टनर चूज कर रहे हो वो राइट है या नहीं. बिकॉज जब आप खिलोगे वो आपको उठाएगा, जब आप बैड फील करोगे वो आपको अच्छा फील करवाएगा, जब आप चाहोगे कि कोई आपको और चीजों के अंदर इनकरेज करे, एंड बिकॉज वन सोल, जब दो सोल एक हो जाती है तो फिर वो एक्सपेक्ट करती है चीजों को. रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट गुड थिंग्स, उसमें हर्डल्स आती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. रिलेशनशिप यही नहीं कि हर चीज को स्मूथली लेके चलते रहो. More consequences happen, you know. Exactly. आपको शैतान इतना आजमाएगा कि आप एक मोमेंट पे सोचोगे यार ये पार्टनर आपके लिए सही भी है या नहीं. एंड आपको उस चीज को देखना है कि यार ये इंसान मेरे लिए मुझे इस चीज में नहीं उठा रहा, यार ये इंसान मुझे इनकरेज नहीं करता, मुझे खुदा के करीब नहीं लेके आता, बल्कि जब मैं चर्च जाती हूँ तो मुझे टॉन्ट मारता है, जब मैं खुदा के करीब आने लगती हूँ तो मुझे किसी बात पे कुछ कहता है, जब मैं कहती हूँ कि मुझे ये चीज करनी है तो मुझे इस चीज से मना करता है. आपको स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने से. यस एग्जैक्टली. और मैंने देखा है अंजुला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप पे अपनी मर्जी वो करते हैं, यू नो, कि आप उनकी मर्जी से चलो, वो चाह रहे हैं आप ये करो, आप ये करो, बट आपको किस तरह पता चलेगा कि वो सही है या नहीं? इस तरह तक जब आप कुछ कह रहे हो तो वो आपकी सुन रहा है. जब आप उससे कह रहे हो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो क्या वो आपकी सुन रहा है? नहीं ना. जो नहीं सुनते वो आपके लिए गलत है, बिकॉज फॉर द गाय एंड फॉर द गर्ल आप दोनों का रिलेशनशिप इक्वल होना चाहिए. I know the guy is the provider and the girl has to respect the guy. But मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उधर वो लड़की कहती है that जो लड़का है वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है और जो लड़की है वो प्यार वो केयर करती है. एंड जब तक आप एक लड़की को रिस्पेक्ट नहीं दोगे वो आप फिक्र और प्यार नहीं देगी. हाँ और रिस्पेक्ट नहीं करेगी. I have seen those girls और मैं लड़कियों को बहुत अच्छा फील करती हूँ जो अपनी रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखती हैं. लड़कों के लिए भी है, आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट सब कुछ होनी चाहिए, बिकॉज खुदा आपको बहुत ब्यूटीफुल लाइफ से देखता है. खुदा की नजरों में आप बहुत अजीम हो, आपका रुतबा उसकी नजर में बहुत अजीम है, आप उसके बेटे हो, आप बस उसका आपको पता होना चाहिए यस दैट आपके लिए वो इंसान प्रोवाइड कर रहा है. आपके बैड टाइम्स में वो आपके साथ है या सिर्फ आपकी खुशियों में आपके साथ है. यू नो व्हाट, मैंने देखा है दैट जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना उसमें द गाय वांट्स कि यार अच्छा तुम हैप्पी हो जाओ, मैं तुम्हें ये बताऊंगा. दैट यू डोंट वांट टू मेक हर फील हैप्पी. वो चाहता है कि आप अकेले रूम में बैठो, आप अपने आप को खुद हैप्पी करो, आप लोगों के पास जाओ, आप लोगों को बताओ, वो आपको हैप्पी फील करवाए, एंड देन आप उसके पास जाओ, फिर वो आपको एक अच्छे से ट्रीट करेगा. एंड व्हेन यू आर सैड ही इज सैड. दैट इज व्हाट इज टॉक्सिक. दैट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. बिकॉज आप जब बुरा फील करते हो आपको एक इंकरेजमेंट चाहिए होती है. जब आप डाउन फील करते हो आपको चाहिए होता है यार आपके कोई आके आपको हक कर देगा ना, आपकी कोई फ्रेंड आपको हक कर देगी ना, आप इतना अच्छा फील करने लग जाओगे कि यार
नहीं यार, मैं इससे बहुत बढ़ के कर सकता Yeah. हूँ, क्योंकि आपको वो encouragement चाहिए। और यू नो जब टॉक्सिक रिलेशनशिप उस टाइम पे चल रहा होता है हम्म। इन योर टीनेज और ऐसे इस तरह से, तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता यू नो। Yes. और अगर बढ़ भी जाए लाइक गो टू मैरिज और शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट वो टॉक्सिसिटी और वो जो सब कुछ होता है ना, वो नहीं जाती है। Yes. और एट द एंड वो टॉक्सिक रिलेशनशिप एक टाइम ऐसा होता है कि वो खत्म हो Yes, जाता है। exactly. और उसमें ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे से प्यार भी ले रहे होते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं। Exactly. और और जिधर इस तरह से- डिसरिस्पेक्ट है एंजेला, उधर प्यार प्यार नहीं नहीं हो है। सकता। यस, बिकॉज हमेशा मैंने एक जगह पे सुना था दैट जब एक रिलेशन से रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो फिर आपके रिलेशन में कुछ नहीं रहेगा। प्लीज थिंक कि जब आपको वो चाहिए वो आपके पास है, जब आपको उसकी नीड है, जब आप चाह रहे हो दैट वो इंसान मेरे पास हो मैं उससे बातें बताऊं, वो मुझे फील, आई डोंट थिंक सो दैट कोई भी अपनी इतनी परेशानियां किसी को बताता है। वो अपने अंदर ही खुद ही फील करता है हर इंसान, बट वो जो थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा है, आपको उस चीजों पे काम करना है। आप मिलके उस चीज को ओवरकम करोगे ना तो खुदा आपका साथ देगा। और हमेशा मैंने और देखा फर्स्टली है, यू हैव टू एंटर हिम। yes exactly, and I've seen so many girls suffering from this thing, जो लड़कियां अपना बेस्ट देती हैं पर उनको बेस्ट नहीं मिलता, एंड वो सोचती रह जाती हैं कि नहीं यही मेरे लिए खुदा ने बनाया। और दे आर इन वेटिंग कि हाँ एक नई दिन ऐसा आएगा बदलेगा। और ये बदलेगा, he will just going to be changed और our relationship is just going to be changed from toxicity और उसकी अच्छी तरह से वो सब कुछ होगा। पर आपको पता है, आप एक बार चांस देते हो या नहीं बदलता, आप 2 बार चांस देते हो, तीसरी बार आपको खुद पता होना चाहिए that this guy or is this like girl, not meant for you. yes, and she and he will never gonna change. And I have like जो लड़की होते हैं ना, वो आपके लिए तब चेंज करेंगे when they feel like that you are the girl they want. And आपको पता है, I know all the girls can relate. जब आप अपने हैप्पी एरा में होते हो ना, तब आपको वो लड़का इतना टॉक्सिक चीजें दे दे कि इतना सैड फील करवा देता है, और जब आप सैड हो जाते हो, जब आप डिप्रेशन में जाते रहते हो, तब वो आपको कहता है तुम तो है ही ऐसी यार, तू रोती रहती है, तू तो आके मेरे साथ चीजें डिस्कस करती रहती है। This is called toxic. This is good. तो वो आपको नहीं कहेगी कि यार जब मैं इतनी हैप्पी थी, जब मेरी लाइफ में हर चीज हैपनिंग थी, मेरी लाइफ बहुत खुश जा रही थी, तब आपको वो चीजें नहीं पसंद आ रही थी। You know लाइफ में और रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन। एग्जैक्टली, एंड आपको सिर्फ ये सोचना है, आई नो दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, ये सेल्फिश इंसान नहीं है जो ये सोच रहा है कि वो भी मुझे उतना दे जितना मैं चाहता हूँ। रिलेशनशिप बैलेंस के साथ चलता है, अगर आप किसी को उतना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको उसको उतना देना भी है, तभी आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा। अगर आप चाहते हो वो आपके लिए बढ़ के चीजें करे तो आप भी करो, सो दैट उसको भी फील हो यार नहीं ही इज द वन। एंड स्पेशली जब आपको ये चीजें नहीं नजर आ रही, सो प्लीज एक स्टेप बैक ले लो। आई नो आपको टाइम लगेगा, आई नो 2 साल आपने बहुत अच्छे गुजारे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ, आई नो आपने 4 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं, आई नो आपने 5 साल बहुत अच्छे गुजारे, पर फिर आपकी अगली लाइफ, it will just going to be destroyed Yes. यार। और जब आपकी शादी हो जाएगी फिर then what you can do? You cannot do anything. You will think about society. You will think about कैसे मैं इन चीजों को ओवर करूंगी. You will think about yourself कि मैं अकेली हो जाऊंगी. So please be aware. Be aware of that guy, that girl जो आपको अभी से ये चीजें दिखा रही है. That he cannot be a provider. That she cannot respect you. जिधर एक लड़की तब रिस्पेक्ट करती है एंजेला, जब उसको लगता है यार he deserves respect because वो मुझे वो हर चीज दे रहा है, मुझे प्यार देता है, मिलके कर करता है। वो नहीं, मैंने देखा लड़कियां नहीं चाहती यार कि आप उसके साथ 24 घंटे बात करो, आप उसके पास रहो। All she wants is a little update of your life, a little care from you, a little love from you. Yes. इवन तो लड़कियां इतनी गिवर्स होती हैं यार, आप उनको थोड़ा सा देखो ना वो आपको बहुत रिच है ना। Yeah. So I just want you girls know
जो लड़का आपके लिए नहीं सही वो आपके लिए चेंज नहीं होगा, वो आपको नहीं फील करवाएगा दैट यू आर वर्दी, वो आपको नहीं, आप कुछ भी कर लोगे, आप उससे मांग मांग के थक जाओगे, मुझे टाइम दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे केयर दे दो, वो आपको इतना पागल करता जाएगा। एंड इवन जब वो आपको वो वो आपको ऐसी बातें करेगा कि आप खुद में इतना वो हो जाओगे, लेस कॉन्फिडेंस हो जाओगे, आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर सकते, एंड देन फिर आपको उस टाइम से बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा। Exactly. And you know, जब we are in that era of toxicity in your relationship, so if the person in front of you, whether it is he or she, but doing sacrifice for you, और at the end अगर प्यार भी दे रहा है, फिक्र भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आपके लिए sacrifice भी कर रहा है हर चीज़ में और सब कुछ, but all you have to do pray for him. Pray for her. Yes, exactly. I have seen so many relationships. मैंने इतने लोगों के रिलेशनशिप देखे हैं जिनकी लाइफ में पहले सिर्फ दुनियावी चीजें होती हैं, उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, but when they start again and they start with the word of God, with the guidance of God, उनका रिलेशनशिप एक एकदम पर जाता है। Yeah, they have shine of their Yes, yes, exactly. और उनके रिलेशनशिप में एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी अट्रैक्शन होती है कि people wants to be in that phase as well. लोग चाहते हैं कि हमारा भी रिलेशनशिप वैसा हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको उस तरह से लेके चला, एंड स्पेशली जब आप अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करो, खुदा से मांगो, उसके स्टार्टिंग में ही उससे पूछो कि खुदा मुझे बता, क्या यही इंसान मेरे लिए ठीक है, क्या यही है जो तूने मेरे लिए चूज किया है? वो आपको गाइडेंस देगा। जब आप उससे पूछते नहीं हो, जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को लेके चलते हो, तो आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती, आप भटक जाते हो। एंड जस्ट नो दैट जो इंसान आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता ना, वो इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। एंड हर रिलेशनशिप, दिस इज नॉट अबाउट अ गाय और अ गर्ल्स रिलेशनशिप, एवरी रिलेशनशिप नीड्स सेक्रीफाइस। तो आपको दोनों को नीड्स को लेके चलना है। नो दैट वो मुझसे क्या चाह रही है, नो दैट वो मुझसे क्या चाह रही है। आपको पता होना चाहिए दैट आप इधर खड़े नहीं होते, ये लड़का आपके लिए सही नहीं है, ये लड़की आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको इन चीज़ों से पीछे लेके आ रही है, वो आपको खुदा के करीब नहीं लेके जा रही है। आपको रिलेशनशिप के स्टार्ट में ऐसे साइंस मिल जाते हैं, आपको पता है, पर आप वो इग्नोर करते हो, एंड जब आप वो इग्नोर करते हो, आपका रिलेशनशिप वर्स्ट फेजेस में चला जाता है। आपको शुरू में खुदा दिखाता है, पर आपको होता है यार नहीं, ये शैतान की तरफ से है, शायद शैतान नहीं चाह रहा कि यार मैं इस लड़के के साथ चलूं। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग में आपको इतनी चीजें मिल जाती हैं एंजेला, कि वो लड़की आपको शायद वो पॉइंट्स दे देती है, वो लड़का आपको वो पॉइंट्स दे देता है, वो साइंस दे देता है जो आपकी लाइफ में सही नहीं होते। यस, और आपको पता है आपकी जो एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होगा ना, यू नो, आप देखना कभी उनको इतने लोग आएंगे, इवन तो आपकी फैमिली से लोग उठेंगे, आपकी सराउंडिंग से लोग उठेंगे, क्योंकि उसमें खुदा होगा। लोग चाहेंगे आपका रिलेशनशिप खत्म हो, पर जिस रिलेशन में खुदा होगा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और जो रिलेशनशिप टूट जाए, दैट मींस उसमें खुदा नहीं है, that means वो खुदा की मर्जी से नहीं है। Wow. Yes. We have so many to share. Yes, exactly. But before as well, मैंने बताया कि हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ बताने के लिए, यहाँ शेयर करने के लिए. Yes. But we have done our questions, and this is all we have fueled up in our self, fueled up in our body, and fueled up in our heart. Yes. जो सब कुछ था हमने आपके लिए deliver कर दिया. And me and Angela just want you guys to be faithful, be very proud of yourself. Don't let anyone feel you See yourself down. Yes. from the eyes of the Yes, exactly. We want you guys to be encouraged. We want you guys to guide yourself with the word of God. Yeah. Be on the right path. Ask God that is she right for me? Is he right for me? And especially go for the signs that God is giving you in the start of the relationship. अपने रिलेशनशिप के स्टार्ट में इन साइंस पे काम करना है, and you'll be amazed. Or you know, we are very amazed and we are very incredibly full by the Holy Spirit. कि we have discussed or share हमने ये वाला
जो टॉपिक था how we can overcome the distractions, different type of distractions in our life, just doing life with Jesus, or how we can stay focused on Him, stay focused on God. So it was one of my favorite topic जो हमने discuss किया आज के episode में, और we are just hoping and looking forward for more wonderful topics in the future as well. और हाँ हमें पता है खुदा बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा कुछ करने वाला है future में भी. So we are done today, and thank you so much everyone for allowing me and Fiona to minister you all today. Yes. And it was honored, it was honored, and we are so glad कि हमें खुदा ने opportunity ये मौका बख्शा कि हम दोनों ने साथ बैठ के इतना टाइम गुजारे एक साथ और खुदा के कलाम की बातें हमने आपको बताई और सिखाई और encouragement way में हमें आपको बताई. So it was so honored and so much fun. Yes, and we want you guys Yeah. to relate these things. Hmm. If you guys are facing these things, please remember that God is in control. Yeah. He is doing so many things for you. Yes. He can do anything for you. Believe in Him. Because He loves us and He cares for us. So thank you everybody who are just watching us right now, whether it is he or she, but this podcast is for girls. Yeah. And I'm so honored because you're just watching us right now from the lens of faith. और खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको बरकत दे. And thank you so much. Stay connected with us and stay tuned. Bye bye. Take care. Bye. Bye.